Yes. All right. So whenever you start doing this, Ariba implementation, yeah, also you have to prepare from the start, from the beginning. You need to tell user how this dashboard works, right? And what are the features in this dashboard, right? So suppose you are the SLP consultant. I'm taking you as SLP consultant now, right? So in this case, what you have to do in this case, you will have access of supplier management, this tab only, right? So this will you'll be able to access everything. Apart from this supplier management, you have also this manage, right? To the manage, you see there is a SM admin and SM administration. There is a two thing, right? SM admin and SM administration. So you will be asking what is the difference between the SM admin और SM administration, इन दोनों में क्या difference है basically, right? जो SM admin होता है इसमें क्या होता है आपका, you have a less admin access, you can say, right? This is not the fully Okay. controlled admin access, it is less admin access. It will work for both the same, but the less admin access will have. And but once you navigate to the administration, so you will see all these roles will be enabled to you. It's basically which roles you are getting deployed, suppose, right? Suppose you are the responsible for only for the SLP implementation, so they will be expecting you to complete do end-to-end implementation of this Ariba, right? For this SLP module, they will not Okay. ask you to implement the sourcing module as well, implement the contract module as well. No, there's a different consultant for everyone. For SLP, there is a particular consultant. For sourcing, there is a particular consultant. For contract, there is a particular consultant. But for as a technical expert, you should aware about that all the module, right? You never go for implementation all along with your alone, right? There is a team for work, everything, right? There is a SLP team leaders, there is a sourcing team leader, there is a contract team leader, there is a CIG consultant, there is a consultant as well, right? But you should aware all this scenario aspect. Now today we'll discuss, as you have discussed already, the supplier management. So supplier management is basically about the supplier onboarding. So how to create the supplier on Ariba portal. As we have discussed, there is a supplier request, there is a supplier registration, then we have a qualification Yeah, and disqualification. Yeah. yeah, I have couple of questions. So this, like, if supplier management is displaying, then it means customer has implemented SLP, right? Yes, absolutely. You got the point. Yeah. Okay. Okay. So what they will do now, what they will do, they will hire you to implement this business, right? To implement whatever the Okay. happen ना, कभी भी नए client के साथ क्या होता है ना, suppose you are going to work with a Sony client, right? So Sony Okay. client will be hiring you to implement this solution, and they directly do not contact you as a consultant. They consult, first of all, Okay. they consult with the partners. It's like Okay. currently whatever the organization I'm working with, suppose I'm working with currently with the KPMG. Now KPMG is the partner, right? So Okay. what KPMG will do, KPMG will go to the clients, multiple clients, many clients, Okay. no, and they will Okay. propose RFQ. That is the RFQ, request for quotation document. You can say that. And there's the RFP. You can also request for proposal, right? So they will propose Okay. the client as a document, and they will explain about everything about this spend management, what features they are having, why we should implement this Ariba spend management, what is the benefits of this, and what is the visibility from the supplier side and the buyer side itself. So they will convince Okay. the client. Suppose the Sony is asking for implementation only, the I have a trouble with this supplier management, I cannot manage my supplier completely, visibility and everything, right? So they will ask for the supplier management implementation. If they wanted to go Okay. with a sourcing module as well, they will also put the requirement as a, I need to also implement the sourcing module as well, right? And this Okay. Okay. Ariba spend management is completely based on their license. Whatever the license of that will be provided to client, they will be having a specific kind of user. Like they are having 100 users, they are having a 500 user, so they need to pay accordingly, right? So Okay. So SLP comes under supply management, right? yeah, I absolutely. It comes Okay. under supplier management. So, so what they Okay. will do now? So, as a partner, what they will do? They will propose it for SLP model implementation. I will charge 1 crore rupees for this particular module, right? For only for the SLP implementation.
Now what the partners will do, now partner, once the partner business got sign off, then they will start searching for the consultant like you, like me, and everyone, right? Now whatever company or they are working, they will reach out to you. If you are okay with that, they will take your interview and they will explain everything. And now you have to start working on that, the requirement of the client, right? They will actually make a one-to-one call with the client, and you have, the client will explain everything to you, and you have to accordingly prepare everything. Like you have to first gather the requirement from the client, what is as is document, what is to be document. Now you will propose the to be document as a kind of a technical and functional aspect of that scenario, right? So you have to prepare all this document together, and you will propose the client. So we are, through the system we are going to proceed like this. We have a supplier management, we have a supplier request, how supplier request raised, who raised it, and what are the option we have, right? So you'll explain each and everything, right? And once the training one will be over, now I will provide you all the standard documents. Do not worry about that, right? So I will give it to you, so you can go directly and you can research as much as you can do through the documents as well, right? Okay, Raju. So you're getting my point, right, Raju? Yeah, yeah, yeah. I was just making some notes. The Yeah, yeah, first time I'm making notes in Zoom. Yeah, I yeah, was yeah. silent. Sorry, I am a little bit fast, right? Sorry for that. Yeah. Okay. All right. So, as you have already done it, the supply request, how, who raised it? So you can tell me, right? So who can raise the supply request? By the way, as per your understanding. Buyer. Yeah, absolutely. You are the buyer, so you'll request, raise the request for the supplier, Yeah, and the registration will be done by whom? supplier. Supplier, and the involvement will be also in the buyer, because if buyer finds there is a much details required, they can Correct. ask They have the to do. request info, right? Yeah, So yeah, this yeah, so yeah. and this qualification, it means this is the different tablet, it is next to the registration. Most of the client I have seen in my life, most of the clients will stop here in the registration labor only. They do not, because see, Okay. uh, the due to the hurry of the business, they don't want to make most of this template configuration in one system. They want only to keep all the questions configured into the registration labor only. तो क्या करेंगे वो लोग कि Okay. जितने भी उनके क्वेश्चंस होंगे, वो बोलेंगे कि आप मेरे को ये Mm-hmm. टेम्पलेट, वन टेम्पलेट तैयार करके दे दो, आई नीड दिस टेम्पलेट completely from my end, and these are my questions, right? So they will ask you to Mm-hmm. prepare template. Now to prepare this template, once you go here, you see there is a template option, you see. If Mm-hmm. somebody asks you where you can get the access from the template, so first of all you should have the admin access, right? Once you have admin access, you can see this template. From the manage, you can see the template here. Okay. Once you click on the And there template, must be some auto or like auto populated template as well, right? yeah, these all are auto populated. I will show you, I'll show you about it. So before going that, We I can will, upload also, yeah, Neil. yeah, Like, sorry. okay. We can upload as well, right? Like export from local to this like customer realm, right? In the Yeah, template. yeah. So what happened now? This system, the system you see now, the same system Huh? will see the customer side anywhere in the SAP, in the TCS, Yes, with yes. IBM, Yeah. everywhere you'll see the same thing, right? But you can configure your template as per your requirement, right? You can also Okay. load the template if you want. You can also configure the templates. Now I will show you how the templates Yeah. look like in the form of first Excel. Then we will go to the system, right? So Yeah. For template, so they will they will first check with the customer, right? The consultants or the implementation team that what are your requirements, and then yeah, they will modify, correct? absolutely, absolutely. So template Okay. directly you won't decide, right? But first Uh, approach you will pose it. Okay, what are the questions you can configure in the supply request? Because okay. SAP Ariba propose you the standard solutions questions to you to Correct. propose the client. You Uh. see, I will show my schedule. You can see my Excel file. No, I'm seeing this processing request P2P customers. Okay. Now I can see Excel. Now you can see. See, so this is the supply request design matrix. It means this template is all about this. It will explain here only, right? So you see. Hmm. So in the introduction, the supply request design matrix collect all the relevant information required to build the supply request in SAP Ariba Supplier Hmm. Management. This data collection template can be used to design the supplier self-registration request as well.
Self registration is nothing. This will be only the link to which is provided your site, the company site, where the supplier Hmm. can directly go and click and they register them by themselves. You don't need to, in this case, you don't need to raise the supplier request from buyer side. You just give him the client to that link. You can directly go to our portal. You can directly log in through there and you can register by himself. So as you can see, the structure of data collection template. This is actually the collection data collection template. You can say itself. So Hmm. once Hmm. you can also share this sheet to the client. कि you Okay. kindly refer this sheet and provide me your questionnaire data. So he will तो ask you, क्लाइंट को हम बायर रेफर कर रहे हैं, राइट, इन दिस पर्टिकुलर केस, yeah. So है ना? हाँ, ये जो client है ना, in this case में suppose हाँ. you are working with Amazon, right? Your client is TCS now. So आप Hmm. क्या करोगे कि ये sheet जो है ना, you will share with the client by with the explanation. We directly you cannot share, but you just take him in the call हाँ. हाँ. and you have Okay. explained करो उसको, and these are the request content. Hmm. So these are the SAP standard questions, right? So you can see it here. So there is a number, Hmm. there is a number of section, right? We'll also create this from the system as well. So these are what are the Okay. Okay. questions you can give: supplier legal name, full name, what is the business justification for now, your primary contact. Hmm. These are the questions you will propose to the client first. What you can give in the supplier request template. This is the supplier request template instead of supplier registration. So Yeah. यहाँ आप दे सकते हो, आप क्या कर सकते हो ना इस क्वेश्चन में, आप यू कैन क्रिएट अ क्वेश्चन, यू कैन क्रिएट अ सेक्शन, यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल क्वेश्चन एज मच एज यू वांट, राइट? Okay. एंड वेन एवर यू क्रिएट तो दिस यही क्वेश्चन, शीट वी विल मतलब अपलोड करेंगे वहीं पे, है ना, एसएमपी में? यस एसएलपी में ये अपलोड करने से ज़्यादा ना, ये आपको टेम्पलेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ किधर करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे। ओके. ओके. ठीक है ना? अभी ये देखिए, अभी आपका क्या है ना, ये देखिए, अब क्वेश्चन आपने बनाया, सपोज यू हैव डिजाइन दिस क्वेश्चंस एंड यू हैव गिवन अ सप्लायर मेन एड्रेस, ठीक है? तो ये कुछ फील्ड ऐसी है ओके. जैसे आपको आपको ये फील्ड मैप करना पड़ेगा। सपोज द मेजर फील्ड्स आर लाइक दैट: वेंडर नेम, या you see, in the banded address field हम्म. and this postal code, these are the field, also these are the SLP field value. सो जब आप टेम्पलेट ओपन करो ओके. तो ये फील्ड आपको ये वाला डालना पड़ेगा उसके अंदर कि टू मैप दैट क्वेश्चनियर टू द योर ईआरपी सिस्टम। दिस फील्ड इज नथिंग, दिस इज जस्ट इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपका एसएपी के और ईआरपी के लिए ये आप मैप करते हो ये फील्ड। एंड दिस फील्ड ओके. यू कैन फाउंड इट फ्रॉम द S4 फील्ड लेवल, ठीक है? तो अभी आप ये क्वेश्चंस देखो, इसके बाद आपके पास आता है हमारा ये आप देखो, इसमें सप्लाई रिक्वेस्ट जब भी बनता है तो इसमें आपका एक टास्क बनेगा जो कि अप्रूवल रिक्वेस्ट होगा। दिस इज कम्प्लीटली द इंटरनल लेवल ऑफ अप्रूवल। तो यहाँ पे आप सप्लाई रिक्वेस्ट का टेम्पलेट शेयर करेंगे, क्वेश्चंस क्या क्या होगा, उसके बाद आप उसके टास्क के लिए प्रपोज करेंगे कि कितना लेवल का आपको अप्रूवल चाहिए, 1 लेवल चाहिए, 2 लेवल चाहिए, 4 लेवल चाहिए। सो दे इट्स डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। If they ask ओके. us to set any condition in the request level, they do not actually basically set any condition. If you want to set the conditions for as per the client requirement, you can set the condition as well here. Now, the very important thing is the team. एनी एग्जांपल ऑफ कंडीशन, क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द कंडीशन इन केस? अभी आपको आपको बोल रहे हैं कि नाउ एट द इनिशियल लेवल, मान लो सपोज आपको कि सप्लाई रिक्वेस्ट हमारा अप्रूव करना है एट द इनिशियल लेवल। अब सभी ने किसी ने ओके. रिजेक्ट कर दिया, सपोज दे आर गिविंग सम रीजन टू रिजेक्ट इट। तो अगर आप चाहते हो कि उसको ओके. रिजेक्ट होने के बाद ये नेक्स्ट लेवल पे जाए, ठीक है? इन दैट केस कि हम्म. मेरा रिजेक्ट होने के बाद नेक्स्ट लेवल को भी आइडेंटिफाई होना चाहिए, दिस हैज बीन गेटिंग रिजेक्टेड एनी स्पेसिफिक रीजन, तो वो कंडीशन आप लगा सकते हो बेस्ड ऑन द क्वेश्चनियर कि ये रिजेक्ट ओके. हो रहा है, तब भी ये आपके पास जा रहा है टू री-वेरीफाई दिस वन। तो कंडीशन आप क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट में हम देखेंगे क्या-क्या है कंडीशंस उसमें। बेसिकली सप्लाई रिक्वेस्ट पे कोई कंडीशन फिक्स नहीं होता जनरली। वी जनरली गिव दैट ओके. the approval 1 level, 2 level, 3 level approval, because this is the internal form. That's your basic name, address, that's all, and the contact details they are putting to just to keep the supplier start onboarding for the registration. ठीक है, ओके. ये होता है। अभी मैं आपको इसमें जो मेजर थिंग होता है ना आपका टीम, ओके. ये टीम आप जो देख रहे हो ना, ये टीम में आप प्रोजेक्ट ग्रुप का जो मेन होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका रोल्स होता है प्रोजेक्ट ओनर। किसी भी टेम्पलेट ओके. की बात करो अरीबा में, दिस रोल्स इज़ ए प्रोजेक्ट ओनर इज़ ए मेन एडमिन रोल। मीन्स यू कैन से कि आप प्रोजेक्ट ओनर को कॉन्फ़िगर करके भी रिमूव नहीं कर सकते कहीं से।
दिस इज स्टैंडर्ड फील्ड, मतलब आप टिकट ओपन मतलब टिकट करके भी नहीं कर सकते, लाइक इफ दिस पर्सन लीव द कंपनी इन दैट केस? या आप अपडेट कर सकते हैं टीम्स को, मेंबर्स को अपडेट कर सकते हैं, बट ये रोल जो होता है ना, इसको आप रिजेक्ट नहीं ओके कर सकते। ओके। ये रोल्स आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। कैन ऑनर एडिट दिस प्रोजेक्ट ग्रुप? यस, ऑलवेज यस, राइट। यूज कमोडिटी एंड रीजन टू असाइनमेंट, आपका मन है आपको असाइन करना है इसको, कमोडिटी रीजन कर सकते हो, नहीं तो नो एंड नथिंग। तो इस तरह से टीम जाएगा। सपोज प्रोजेक्ट ऑनर को डाला आपने, प्रोजेक्ट ऑनर में आपने 5 मेंबर को डाला, सपोज मी, सूरज एंड एनी रवि। तो इसमें क्या होगा कि अभी रवि लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन नाउ, अभी apart from the Ravi, there are 3 or more candidates हैं, they can also update their candidate, they can also do। So ये तीनों जो प्रोजेक्ट ऑनर होंगे ना, वो आपको इस रोल्स को मॉडिफाई कर सकेंगे, they can delete this action, right। तो वो ओके। सकते हैं। तो ये बट प्रोजेक्ट ऑनर होना चाहिए, ये रोल उनके पास होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे नील डीएल को भी रख सकते हैं, एक पर्टिकुलर डीएल, जस्ट टू गिव फॉर ट्रैकिंग पर्पस। क्या पता ये पूरा इनका org, if their entire org is impacted, I mean to say the cost center, right, that particular department. So to avoid this type of scenarios, can we keep like in project group name a DL, like Yes, yes, Ariba expert, so that manually in the internal organization they can put the person in the DL, so that it will yeah, not impact here in case any mass restructuring कर जो सके। डीएल की आप बात कर रहे हैं ना, वो आपका इसमें आता है, जैसे आप ग्रुप जब बनाते हो ना, यूजर ग्रुप करके, ओह राइट, करेक्ट या करेक्ट सो करेक्ट, ठीक है ठीक है। इस ग्रुप को आप कुछ भी नेम दे सकते हो एज पर योर प्रोक्योरमेंट लीडर्स, नो, ओके प्रोक्योरमेंट बायर्स, ये सब आप नाम दे सकते हो। उस नाम के अंदर आप ये सारे यूजर्स को ऐड कर दोगे और ये इस ग्रुप को ओके बिलोंग, राइट। एंड अभी आप मैं आपको सिस्टम में दिखाता हूँ। नाउ विल गो थ्रू द सिस्टम। ओके। सो हाँ, दिस वन दिखा, आई कैन सी। यस, सो यहाँ पे आप आएंगे टेम्पलेट्स में, अगेन यू गो बैक। ये तो जब स्टैंडर्ड टेम्पलेट में आप जाओगे ना, तो ये अभी प्रोप्रेशर का इनका दिख रहा है, मॉडिफाइड टेम्पलेट दिख रहा है आपको, कस्टमर एडमिन दिखेगा इधर पूरा, समझ रहे, जो कि एसएपी का स्टैंडर्ड टेम्पलेट होगा, उसको आप कॉपी करके मॉडिफाई करके बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इनके वाले पे चलता हूँ, टेस्ट करना है। ओके, उसमें लाइक ओनर में कस्टमर एडमिन होगा, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्पलेट ऑफ एसी मतलब अरीबा वाला, राइट, दैट यस वी यस नीड टू कस्टमाइज। यस यस, ओके कस्टमर। ये आप देख सकते हो, कस्टमर सपोर्ट एडमिन है ना यहाँ पे, ये हाँ हाँ। ये टेम्पलेट इस तरह का दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ओके तो ओके मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट वाला टेम्पलेट लिया है, लेट्स ओपन दिस रिक्वेस्ट टेम्पलेट। तो ये templates ये completely look like this one, you can see this template, you can see the overview of that templates, right, supplier request templates, you can also modify this name। suppose आपको ये supplier request template का नाम modify करना है, you have to come here, you have to go to the edit properties, or you can rename this name and everything, यहाँ पे आप कर सकते हो, समझ रहे हो? यहाँ पे आप ओके भी कर सकते हो। Now the thing is that concern is this template, whenever you go for any of the new template, do not directly go and आप उसको स्टार्ट कर दो एडिट करना, ये करना नहीं, यू जस्ट सपोज यहाँ इधर आया, अभी यहाँ से कॉपी अलाउड नहीं करेगा, बट आई विल शो यू। यहाँ पे आप आएंगे ओके। ऑप्शन, ठीक है। कभी भी स्टैंडर्ड ओ टेम्पलेट कॉपी। पे आप जाओगे ना, तो यहाँ पे कॉपी बनाओगे, अपना नेम से बना लो, कुछ भी बना लो आप अपना, यहाँ पे कॉपी करके आप ठीक है। बनाओ, ठीक है। तो आप कॉपी ओके करके ओके। बनाएंगे, तो वो इसमें जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट है उसको तो कुछ नहीं होगा, आपको कभी जरूरत पड़ेगी यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर, राइट। तो ले सकते हैं। तो अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप यू कैन सी, अब जितने वर्जन बनाओगे ना, जब भी आप टेम्पलेट स्टार्ट करो, सपोज मैंने कॉपी करके ये बनाया है, ठीक है। अभी करके बनाया, जब भी आप अपना काम स्टार्ट करोगे तो यू स्टार्ट फॉर न्यू वर्जन। अभी मैंने इसको न्यू वर्जन ऑलरेडी कर रखा है, इधर ये ऑप्शन आएगा आपको न्यू वर्जन करने का, ठीक है। ओके वो आप न्यू वर्जन करेंगे, न्यू वर्जन इसलिए करते हैं कि यू कैन एडिट योर टेम्पलेट, यू कैन कॉन्फ़िगर योर टेम्पलेट एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, उसके लिए करते हैं, ठीक है। वंस दिस, what's the limitation in the sense that till what time we can do any modification? it depends actually, for a few of the client I have seen, they have done 1,000 times, but it depends on the Oh, requirement. Suppose 5 years back you go and templates, every time there is something changed, there is every time there is some enhancement is going on, right? So once they all things are done na, they will then publish from here। okay तो अभी हम लोग क्या करेंगे, विल सी दैट। सो ये ओवरव्यू हो गया आपका डॉक्यूमेंट, तो जो भी आप वर्जन हिस्ट्री करोगे ना, जैसे मैंने वर्जन बनाया, तो ये आपको ये टाइम्स डेट एवरीथिंग ये विल शो हियर,
सो हियर ओनली, राइट? सो व्हाटएवर द टेम्पलेट्स, देखो कितने लोगों ने कितने वर्जन बना रखे हैं, मतलब ये टेस्ट का साइट है, यू कैन सी इट, दिस इज द टेस्ट एक्चुअली। सो सो आपको कभी भी काम करना होगा तो यू हैव टू वर्क ऑन द टेस्ट ओनली, नॉट फॉर द प्रोडक्शन, करेक्ट, ठीक है? करेक्ट। तो आप ऐसे जाएंगे, सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये वर्जन होता है। अगर आपको सपोज आपने कोई मिस्टेकली इसको एडिट कर दिया, नाउ इट्स गॉट बिट वर्जन आ गया, तो इसमें आप जाके रिवर्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट पुराना वाला टेम्पलेट आ जाएगा उसमें। ओके, ओके, गॉट इट? तो अभी ओके। आप अभी हमने एडिट प्रोपर्टीज किया, अभी यू विल सी दैट डॉक्यूमेंट्स व्हाट आर द टैब्स। सो डॉक्यूमेंट में आपका मेन, जब भी आप आओगे तो इसमें डॉक्यूमेंट में आपका ये टेम्पलेट दिखेगा, आपको कौन सा टेम्पलेट है, तो सप्लाई रिक्वेस्ट फॉर्म का टेम्पलेट है, दिस इज द स्टैंडर्ड वन। अभी आप जो ऑनर की बात कर रहे थे, देखिए ये ऑनर का ये दिया हुआ है, कंडीशन आल्सो दिया हुआ है, तो ये सब एडिट, अभी हम लोग इसको एडिट करके देखेंगे, बट बिफोर दैट इसी टास्क का भी दिया है, और जनरली स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट के हिसाब से ओनली वन टास्क होता है आपका, अप्रूवल फॉर सप्लाई रिक्वेस्ट, ठीक है? और ये अप्रूवल कौन करेगा, ये यहाँ डिसाइड होता है, यहाँ पे टीम्स पे देखो आप, अरीबा सिस्टम, कस्टमर एडमिन, ये सारे टीम्स रूल्स हैं, तो ये आप यहाँ से एडिट करके यू कैन ऐड एनी ऑफ द मेंबर्स नेम इफ़ यू वांट, राइट? सर्च करके किसी का नेम ऐड कर सकते हो। राइट नाउ देयर इज 3 यूजर्स ओनली, ठीक है? तो यहाँ पे 3 यूज़र देख रहे हो, इसीलिए 3 ही दिख रहा है। जब आपका नाम होगा सिस्टम में, आप जब मल्टीपल टेस्ट करोगे तो आपके पास एक और रोल होगा, यूज़र मैनेजर का रोल, वेयर यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल्स यूजर्स, ठीक है? ओके। हाँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, वो यूज़र मैनेजर एडमिन में होता है। अभी इस पार्टिकुलर टेस्ट साइट पे इन्होंने यूज़र मैनेजर का नहीं दे रखा, सो आई कैन नॉट शो यू दैट वन, बट आई कैन शो यू वेयर एग्जैक्टली यू कैन फाइंड इट, राइट? सो ये सारी चीज़ हो गई, ये कंडीशन टैब से आपका इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर नाउ। एडवांस ऑप्शन है आपका, ये सारी चीज़ें एडवांस चीज़ें हैं, दिस आर द डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट टाइप क्वेश्चन है, आपको सेटअप करना है सारी चीज़ें। तो बेसिकली हम लोग इसमें क्या देखेंगे अभी, कैसे डॉक्यूमेंट्स एडिट करते हैं, कैसे हम लोग क्वेश्चन एडिट करते हैं, राइट? सो सपोज we'll just edit this template now. Once you did, now you see that there is a rules for that, each template is given, कि ये टेम्पलेट्स का मतलब ये हुआ कि सारे रूल दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ दिस इवेंट। अरीबा में क्या होता है ना, जो भी आप टेम्पलेट्स को राउट करते हो या कुछ भी करते हो ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इज इवेंट, राइट? इट इज इवेंट नॉट, ओके। या सो अभी कोई आप इवेंट से ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना, सोर्सिंग का इवेंट भी हो सकता है, सप्लायर का इवेंट भी हो सकता है। This event is ओके। nothing. This is just we are sending this questionnaire to the supplier, right? कि आपका उस क्वेश्चन भेजा, वो मेरा इवेंट है, that is my event. I need to complete that event in the form of. In the template side, these events having this 4-5 section. You can see the rules, you can see the participant, you can see the contents, you can see the summary, right? Now you'll see the rules, what the rules says actually basically. अभी रूल्स में क्या है ना, ये बोलता है कि मिनिमम सप्लायर स्टेटस फॉर दिस इवेंट पार्टिसिपेटेड कितने हैं, नॉट इनवाइटेड रखना है, हिडन रखना है, क्या रखना है, यू कैन डिसाइड हियर, राइट? मतलब आप कितने पार्टिसिपेंट करने हैं, रजिस्टर्ड सप्लायर को पार्टिसिपेट करना है कि नॉट इनवाइटेड को करना है, कैसे, किसको आप ये रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो बेसिकली, राइट? तो ये जनरली फॉर इनिशियल क्लाइंट यू नीड टू कीप इट नॉट इनवाइटेड, ठीक है? तो आप उसको भेज सकते हैं, राइट? अगर आप यहाँ पे सेट कर दोगे रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, तो आप ये रिक्वेस्ट उनको सेंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिस सप्लायर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन दिस सिस्टम, ठीक है? ये आप अकॉर्डिंगली रूल्स कर सकते हो फॉर दिस पार्टिकुलर टेम्पलेट, एंड दिस टेम्पलेट इज फॉर द स्पेसिफिक फॉर only one standard template. It's not for every supplier we are giving the multiple template. It's only template. ओके। सो ये सारी चीज़ें सेट कर दो। आपका टाइमिंग रूल्स इसमें सेट होगा कि आपने सपोज ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट बना के मैंने पब्लिश किया 60 डेज़ के लिए, बेसिकली 30 डेज़ करते हैं हम लोग, मतलब जहाँ भी आपको लगे कि हाँ इन वी शुड गिव द 60 डेज़ टू द कस्टमर, 90 डेज़ टू द कस्टमर टू रिस्पॉन्ड क्वेश्चनर, यू कैन आल्सो गिव इट, राइट? मतलब आप यहाँ से डे, मिनिमम आवर्स, ये सारा मिनट्स आवर, ये सारे चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। राइट नाउ इट इज़ गिवन 60 डेज़, मतलब ये इवेंट जो है, जो आप सप्लाई रिक्वेस्ट उनको भेजोगे टू पार्टिसिपेट, ये आपको ओपन होगा 60 डेज तक ही, मीन्स वो इवेंट वो 60 डेज से ऊपर जैसे जाएगा, यू कैन, हाँ वो आपका ये पेंडिंग सिलेक्शन में चला जाएगा, ठीक है? आप उनको नोटिफिकेशन देना चाहते हो, यू कैन आल्सो सेट दैट नोटिफिकेशन एज वेल, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। आप इफ यू वांट टू सेंड द नोटिफिकेशन 5 डेज एवरी वीकेंड, you can 2 days, 1 days, whatever the days times you select, it will give the notification to the supplier and you as well, right? So ये सारी चीज़ें, let's ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपका बिडिंग रूल्स आता है, ये जनरली सोर्सिंग में यूज होता है, इट्स नॉट
not required here because this is the Okay. supplier basic registration. Once you see the sourcing template, we'll see these things because Mm-hmm. so वगैरह सारे सब RFQ के ऊपर से आते हैं सारी चीज़। ठीक है, तो Okay. ये सारी चीज़ हो गई। तो अभी मैं आपको ये मार्केट फीडबैक्स वो क्या आता है, ये सारी चीज़ें बेस्ड ऑन द सप्लायर रजिस्ट्रेशन कैसा रहा, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, फर्दर वो सारी चीज़ें देख के ये सब मार्केट फीडबैक्स डालते हैं लोग ऐसा। तो सप्लायर मैनेजमेंट है, स्पेसिफाई क्वेश्चन फॉर्मेट, यस इट इज ए क्वेश्चन फॉर्मेट नॉट इन द फॉर्म, इट्स ओनली क्वेश्चन फॉर्मेट बिकॉज वी गिव द क्वेश्चन टू द सप्लायर। ठीक है, ये रिक्वायर्ड इस क्वेश्चन रिक्वायर्ड, यस नो आप सेटअप कर सकते हो, नो करोगे तो इट विल नॉट विजिबल टू द सप्लायर। सी इफ क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड फिलिंग इट आउट टू द सबमिटिंग इट इज अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ द सप्लायर, इट्स अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ द सप्लायर मैनेजमेंट वर्कफ्लो एसोसिएटेड विद द कंटेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सप्लायर क्वेश्चन इसको फिल करना ही है, अदरवाइज ही कैन नॉट बी ऑन बोर्डेड। फिर ये मैसेज बोर्ड होता है आपका, ये मैसेज जो भी आप एक्शन लोगे वो मैसेज बोर्ड में आपको दिखेगा, यू कैन आल्सो कम्युनिकेट टू द सप्लायर, वो सारी चीज़ें मैसेज बोर्ड के अंदर आपको दिखती है। ये सारे रूल्स है स्टैंडर्ड। ठीक है, ईमेल एड्रेस टू स्पॉन्सर विच पार्टिसिपेट कैन रिप्लाई, अगर आप यहाँ पे ऑनर के रिप्लाई करोगे तो वो आप वो नहीं कर सकेगा, पार्टिसिपेंट जो रहेगा, इसलिए अदर्स ईमेल्स मतलब आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिक्स कर सकते हो। ये टेम्पलेट्स का सारे कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन है, वट एवर द इट इज़ गिवन यू कैन कॉन्फ़िगर योर टेम्पलेट एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये सारा Mm-hmm. फॉर ऑल दिस सेटअप फॉर मैसेज बोर्ड ओपनिंग टाइम एवरीथिंग फॉर बाय डूइंग दैट, फिर आप वो क्लाइंट को प्रपोज करोगे कि वी हैव कॉन्फ़िगर दिस टेम्पलेट एंड आप एक बार बताओ डू यू वांट एनी चेंजेस, देन यू हैव टू कम हियर अगेन एंड यू हैव टू मॉडिफाई दिस रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टेम्पलेट अकॉर्डिंगली, राइट। बेसिक इसका जो होता है ये कंटेंट पार्ट होता है, मैं आपको कंटेंट दिखाऊंगा बिफोर दिस पार्टिसिपेंट्स, दिस इज इनवाइटेड पार्टिसिपेंट कॉन्टेक्स्ट। ये जनरली यहाँ से यूज नहीं होगा। ये क्या होता है ना कि जब आप मास इनवाइट करते हो उस टाइम ये आप ऐड मल्टीपल पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। अब ये मैं आपको सप्लायर प्रोफाइल Okay. पे जाके उधर दिखाऊंगा। ठीक है, Okay. बेसिकली हम लोग कंटेंट्स पे काम करना है यहाँ पे। तो ये आपका सप्लायर रिक्वेस्ट फॉर्म है। ठीक है, इस सप्लायर रिक्वेस्ट फॉर्म में आप देखेंगे कि सप्लायर टाइप से जनरल इन्फॉर्मेशन है, आपका सप्लायर मेन एड्रेस है। ठीक है, नाउ यू वांट टू ऐड दोस क्वेश्चन है जो हमने अभी निकाला यहाँ पे। सपोज ये क्वेश्चन आपने यहाँ हम लोग डालते हैं, ये आप देखो ये है ना। अभी सपोज हम लोग एडिशनल कुछ डालते हैं इसमें, प्राइमरी कॉन्टैक्ट दिया है, लीगल इन्फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे हम डालेंगे यू कैन क्रिएट एडिशनल फील्ड। अभी हम लोग क्रिएट करें एडिशनल इन्फॉर्मेशन करके, ऐसा एडिशनल इन्फो, ये क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है। ये जो सीट है ना, दैट सीट आई सो यू नो दैट वो आपको क्लाइंट से पूछना है कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस देना है हमें, मतलब आपको कैसा चाहते हो कि आपका टेम्पलेट वैसा डिज़ाइन हो फॉर द सप्लायर क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, Mm-hmm. वो जैसा देगा आपको वो क्वेश्चन सेक्शन में लाके ऐसे डालना है यहाँ पे एज पर दिस फॉर्म। ठीक है, वो रिक्वायरमेंट वर्कबुक के हिसाब से। सो Mm-hmm. नाउ अभी हम लोग एक से एक सेक्शन क्रिएट करते हैं, एडिशनल इन्फो, राइट, एंड आई विल गिव योर नेम राज, रिक्वायरमेंट इज। ठीक है, यहाँ पे डाला, ये तो डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दो एडिशनल इन्फो टेस्टिंग, इट्स नॉट मैंडेटरी, बस हम इसको। ठीक है, यहाँ ये विजिबल टू पार्टिसिपेंट, यस टीम एक्सेस कंट्रोल, ये आप जो रोल एक्सेस कंट्रोल दोगे ही कैन सी, तो ओनली आप दो कि प्रोजेक्ट ऑनर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओनली। ठीक है, ये यहाँ पे रोल सेट रहेगा, मैं ओके करता हूँ यहाँ पे। ये देखो ये आपका एडिशनल इन्फो राज रिक्वायरमेंट ये ओपन हो गया। अभी इसके अंदर मुझे क्वेश्चन ऐड करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको ऐड क्वेश्चंस, यहाँ पे ऐड पे भी क्लिक करके आप डायरेक्टली यू कैन आल्सो क्लिक ऑन सी सेक्शन 5। Mm-hmm. यहाँ पे आके एडिट करके यहाँ से आप कंडीशन भी क्लियर करें, यहाँ पे आप आके यहाँ पे सेक्शन में ऐड पे आके क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स ऐड कर सकते हैं, वट एवर योर रिक्वायरमेंट इज यू कैन ऐड फॉर। सपोज मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करता हूँ, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन रेट फॉर दिस सप्लायर। ठीक है, ये मैंने ऐसे डाल के ये क्वेश्चन ऐसा सॉर्ट कर दिया। अभी अभी आप इससे ये क्वेश्चन आप देने का मतलब अभी सप्लायर से पूछ रहे हो, राइट, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन रेट फॉर दिस मीन्स फॉर दिस वन। ठीक है, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, सपोज दिस क्वेश्चन यू आर Mm-hmm. पुटिंग टू सप्लायर,
अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे चाहते हो, यू वांट दिस क्वेश्चन एज आंसर टाइप एज अ टेक्स्ट सिंगल लाइन आइटम चाहते हो, मल्टीपल चाहते हो, कैसे होल नंबर में चाहते हो, डिसमल, यस नो, जैसे चाहते हो यू कैन कॉन्फ़िगर योर क्वेश्चन, ठीक है। फॉर नाउ आई एम जस्ट कीपिंग दिस वन लाइन टेस्ट सिस्टम। एक्सेप्टेबल वैल्यू एनी आप डाल सकते हो, जो मैंने आपसे उस दिन बात किया था ना लिस्ट ऑफ चॉइसेस के लिए, याद है आपको? कल हमने डिस्कस किया, कैन डिजाइन द लिस्ट ऑफ चॉइसेस हियर, राइट? आप समझ रहे हो कि क्या वैल्यू होगा। सपोज मेरे को लिस्ट ऑफ चॉइसेस में देना है चॉइस 1, वो चॉइस, यस ड्रॉप डाउन वाला बता रखा है राइट। हाँ या जो मैं ऐसे नहीं बता रहा था कि आपको कोई भी क्वेश्चन आप यू कैन कॉन्फ़िगर चॉइस 1, यस मे बी अनस्पेसिफाइड समथिंग। या चॉइस बी, ऐसे करके आप ऐड कर सकते हो मल्टीपल, ठीक है, चॉइस सी। तो ये करने से ये होगा कि आपका वहाँ पे ऑप्शन ये विजिबल होने लगेगा सप्लायर के पास, ठीक है। यू कैन आल्सो सेट इट डिफॉल्ट फॉर नाउ, ठीक है। देखिए आंसर आप ये जिस तरह से क्वेश्चन बनाना चाहते हो यू कैन मेक योर क्वेश्चन हियर, ठीक है। आप उसका रिक्वायरमेंट दे सकते हैं, लिस्ट ऑफ चॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं, वैल्यू नंबर्स दे सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। नाउ अभी मैं इसको सेव करता हूँ लव लिस्ट, ठीक है। अभी ये देखो आपका ये आ गया यहाँ पे, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन 5 में 5.1 मैंने क्रिएट किया, दिस इज माय सेक्शन, डोंट बी गेट कंफ्यूज, सेक्शन एंड क्वेश्चंस आर डिफरेंट थिंग। Now you have also the requirement. You can also create the requirement as well. It's a kind of form of question, but you can put your requirement over there. You want answer, you can design your answer as per your requirement. ठीक है। यहाँ पे हो गया, ये आपका लिस्ट ऑफ चॉइसेस आएगा ए बी सी, ठीक है। अभी वो सप्लाई कौन सा सेलेक्ट करना चाहता है, यू कैन सेलेक्ट, ठीक है। ये आपका ये सपोज देखो ये जनरली दीज आर द स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सप्लाई टाइप क्या है, इंडिया का है, ये फॉरेन है, यू कैन यहाँ पे आपको आ रहा है अदर्स, ठीक है। यू कैन आल्सो आप एडिट कर सकते हो इसको, आप ये अदर्स के जगह आप अपना बना सकते हो फॉरेन सप्लायर, डोमेस्टिक सप्लायर, फॉरेन सप्लायर, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि क्वेश्चन किस तरह से सेटअप है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे डायरेक्ट एडिट पे आना, एडिट कंटेंट, ठीक है। यू कैन सी हियर, राइट। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सप्लायर का टाइप क्या है, टेस्ट है, सिंगल टाइप है, लिस्ट ऑफ चॉइसेस देना है उसने दिया हुआ है, जैसे सिंगलर टू वे आई हैव डन इट इंडिया फॉर अदर्स। यहाँ पे आप फॉरेन डालना चाहते हो, यू कैन ऐड योर फॉरेन सप्लायर। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फॉरेन, you can add foreign here. Now basically done, see this foreign is also there, right? So ये एक तरह से हम लोग जो क्वेश्चन दे रहे हैं उनको स्पेसिफाई करा रहे हैं कि आप इस तरह से सबमिट करो योर आंसर। सपोज यू आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू द आउटसाइड ऑफ इंडिया, ठीक है। आप सऊदी में काम कर, सऊदी के लिए भेज रहे हैं, दुबई के लिए भेज रहे हैं, तो आप उसको फॉरेन सप्लाई करके यहाँ पे ऐसे वो सेलेक्ट करेगा सप्लाई रजिस्ट्रेशन में कि मेरा रिक्वेस्ट जो आया है, मैं बताऊंगा कि आई एम द फॉरेन सप्लायर, आई एम जस्ट गिविंग माई आइडेंटिफिकेशन एज ए फॉरेन सप्लायर, ठीक है। ओके ये सारी चीज़ें देखिए। फिर ही अपना सप्लायर का पूरा नेम फिल करेगा, ही विल फिल एवरीथिंग एंड ही विल सबमिट दिस डिटेल। जैसे मैंने आपको दिखाया था कल सप्लायर वाले थे क्या सबमिट होता है, यही क्वेश्चनर मैंने उनको भेजा था सप्लायर रिक्वेस्ट के फॉर्म में, होप यू रिमेंबर, सप्लायर रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में, राइट। ये आपका इंटरनल रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फॉर्म है, बट यू कैन आल्सो कॉन्फ़िगर योर क्वेश्चन अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये आपका रिक्वेस्ट का फॉर्म जो इंटरनली जाएगा बेसिकली। तो आपको अगर आइडिया, आप मान लो कि आपने किसी डेल कंपनी से बात कर रखा है कि मेरे को डेल से काम लेना है, ठीक है। नाउ आपके अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट हेड है आपका, बोलता है आपको कि राज यू गेट द सप्लायर फॉर दिस 100 लैपटॉप्स, आई नीड टू परचेज 100 एनीथिंग, यू नो वट एवर द कंटेंट्स इज, सो आप वांट टू परचेज, तो आप पास अगर सप्लायर का किसी का कांटेक्ट है तो आप अरीबा में सप्लायर रिक्वेस्ट के थ्रू, ये आपके पास पहले आप ऑफलाइन उससे कुछ डिटेल लेना है तो यू कैन टेक इट, दिस ईमेल आईडी, व्हाट बिजनेस डज, what is your reputation, you can research the market of the supplier, and आप उसको लेके डायरेक्टली सप्लायर रिक्वेस्ट के थ्रू यू कैन सेंड द इन्विटेशन टू रजिस्टर हिमसेल्फ ऑन दैट पोर्टल। सो आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको लेके अपना बिजनेस निगोशिएट करके यू कैन प्रोसीड फर्दर, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन लेके आप उसको आगे जा सकते, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं सप्लाई रिक्वेस्ट फॉर्म में, ये सारा आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इस स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को आपको क्लाइंट के साथ डिस्कस करके आप क्लाइंट के हिसाब से अकॉर्डिंग आप उसको मॉडिफाई करेंगे। समझ रहे हो कि आप क्लाइंट आपको कुछ भी दे सकते हैं, आपको क्लाइंट को स्पेसिफाई करना है कि ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन है, हाउ द रजिस्ट्रेशन, बेसिकली हम लोग क्लाइंट के साथ रजिस्ट्रेशन टेम्पलेट ही डिस्कस करते हैं, नॉट दिस सप्लाई रिक्वेस्ट, बिकॉज सप्लाई रिक्वेस्ट इज फॉर आवर बायर इंटरनल पर्पस। जब आप सप्लायर रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो ये टेम्पलेट आप, मैं आपको दिखाऊंगा रजिस्ट्रेशन वाला, तो वो कैसे एक्सप्लेन करना है आप उसको बताएंगे कि ये चीज़ें हैं स्टैंडर्ड में,
आपके हिसाब से सप्लायर ऑनबोर्डिंग करने के लिए व्हाट आर द मैंडेटरी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड, आप बताओ मेरे को। बस बेसिकली यही सारी चीज़ें होती है, लीगल इन्फॉर्मेशन होता है, आपका क्वालिफिकेशन डेटा, ये सारी चीज़ें होती है। ऐसा करके वंस And कितना, how many sessions you take, Neil, with client to explain them this template? it's This is it's a depends on that. So suppose they have kept 2-3 calls in a week, right? कि मतलब क्या होता है ना, okay. उनके लिए उनके तरफ से फाइनलाइज करने में बहुत टाइम लगता है, कि Right. बिजनेस के साथ अप्रूवल लेना पड़ता है। मतलब हम लोग का क्या होता है ना कि कोई भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप जाओगे ना, तो मैक्सिमम हमें हम्म लगता है 3 to 4 मंथ मैक्सिमम, कि हम्म 14 वीक्स में आपको वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर देना है। अगर वो okay. क्लाइंट डिले करता है 14 वीक्स में आपको फाइनली करना। क्लाइंट अगर डिले करता है तो क्लाइंट हैव टू पे फॉर दैट, देयर इज सम रूल्स एंड रेगुलेशन, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट साइन विद द पार्टनर। क्लाइंट डिले करेगा Okay. दैट इज Okay. नॉट आवर फॉल्ट, राइट? बट क्लाइंट को दे हम्म देता, सबमिशन कर देगा आपको कि ये मेरी क्वेश्चनेयर है। वो क्या करेगा कि आपको उठा के अपना सारा डेटा दे देगा कि एक एक्सेल शीट में भर के कि आप, ये मेरा रिक्वायरमेंट है, आप कैसे उसको टेम्पलेट में डालते हो, क्या करते हो, इट्स ऑफ योर हेडेक रहा, ठीक है। okay. Sorry. तो ये चला जाएगा उसके पास, ही कैन डू, मतलब वो आप ईमेल करेगा, आपको अप्रूवल के लिए पूछेगा, ये है कब तक हो जाएगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब वो दे देगा तो आपको ये टेम्पलेट रेडी करके टेस्ट में आपको इसको चेक करना पड़ेगा, अप्रूवल लगा के चेक करना पड़ेगा। फिर आप क्लाइंट के पास जाएंगे डेमो लेके कि दिस इज द सप्लाई रिक्वेस्ट फॉर्म, और मैं इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करता हूँ, दिस इज माय रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको उसको उस तरह से रिप्रेजेंट करके यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द सिनेरियो, कैसे काम Okay. करेगा, ठीक है। वो आपसे मल्टीपल क्वेश्चन दे विल आस्क, लाइक मेरा लीगल डॉक्यूमेंट कैसे कहाँ डालना है, कैसे करना है, हाउ यू कैन प्रोसीड फॉर दैट, किस यूजर को क्या रोल देना है, सारे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। यू हैव टू गेट रेडी कि मतलब हम्म कौन से रोल्स, वो जैसे बोलेंगे कि मेरे को प्रोजेक्ट ऑनर में लीगल्स का बंदा डालना है, ठीक है, उसमें प्रोक्योरमेंट का बंदा हम्म के वो डालना है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि बहुत सारे सप्लायर, देखो क्या होता है कि कई बार क्वालिफिकेशन वाले जो सप्लायर होते हैं ना, तो उनके पास क्वालिटी के लिए वो बोलते हैं कि नहीं, मैं लीगल मेंबर को ही एज ए प्रोजेक्ट ऑनर बनाऊंगा, ही विल रेज दैट क्वालिफिकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, राइट? तो वो उसके हिसाब से चलता है, तो हम लोग को उसके हिसाब से टेम्पलेट क्वेश्चन देते हैं। जनरली हम लोग डू नॉट उसको हम So you just, या प्लीज गो अहेड। yes, Sunil, sorry, you complete first. या तो जो भी रिक्वायरमेंट होता है ना उनका, वो हम लेते हैं पूरा पेज में, वी ट्राई टू फिक्स ऑल द रिक्वायरमेंट। अगर क्लाइंट हैप्पी नहीं होगा, ही विल एस्केलेट यू टू द नेक्स्ट लेवल की, आई वांट दिस रिक्वायरमेंट, आई दिस रिक्वायरमेंट। फिर आप आते हो कस्टम रिक्वायरमेंट के ऊपर कि दिस फील्ड कैन नॉट बी अचीव टू द स्टैंडर्ड वन, सो वी नीड टू कस्टमाइज योर रिक्वायरमेंट। सो अरीबा आपको 5 स्टैंडर्ड फील्ड ऑफर करता है टू फ्री ऑफ कॉस्ट टू कस्टमाइज। मोर देन दैट दे हैव टू पे फॉर दैट अमाउंट, राइट? तो सारी चीज़ें Okay. होती है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? So do we have any set of questions, Neil? Like what, like these standard questions? Definitely they will ask. We have हाँ के हाँ, पास list of questionnaires. तो ये जो लिस्ट ऑफ Like क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाया ना, ये वाला, yeah, या in related with this list of questions that they might ask. Definitely they will ask this and this question, right? So any questionnaire we have, आई शो, like just for your देखो purpose, like we say cheat sheet, right? बोलते नहीं है? ये आप देखो, ये हम लोग रजिस्ट्रेशन क्वेश्चनर में आ गए ना, ये आप देख रहे हो। मैं हाँ आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये अभी आपको दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है. Yeah, I can see. एक मिनट, यू कैन सी राइट। तो Yeah, I can ये see. जो या ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये सारे क्वेश्चंस, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है ना, तो ये क्वेश्चंस को आप प्रपोज करते हो। स्टैंडर्ड मीन्स ये हम लोग Okay. भी उनको प्रपोज कर सकते हैं, इट इज नॉट लाइक दैट कि आपका ये स्टैंडर्ड है तो आप उसको प्रपोज नहीं कर सकते हो। इनमें से मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट गेट Okay. फ्रॉम हियर ओनली, राइट? आपको कोई एक्सटर्नल, हाँ. सपोज एक सप्लायर होगा, मैं अगर सपोज आई एम गोइंग टू वर्क एज ए सप्लायर, आपने अमेजन में भी देखा होगा, देयर इज अ मल्टीपल सप्लायर, राइट? तो सप्लायर को, किसी हम्म. सप्लायर को इंटरनेशनल हो डोमेस्टिक हो, उनको क्या चाहिए? सप्लायर का पूरा एड्रेस होता है उनका, फिर आपका आईएसओ सर्टिफिकेट्स होता है आपका, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा, उसका कंपनी प्रोफाइल होगा, ये सारी चीज़ें ही आती हैं, राइट? Okay. आपको Okay. अभी मान लो कि किसी सप्लायर ने बोला कि नहीं, आपको ऑनबोर्ड करने के पहले मान लो कि आप एज ए अमेजन हो, अमेजन की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप बोलते हो कि हम सप्लायर को उसी को ऑनबोर्डिंग कर दे जो हमारा एनडीए साइन करे बिफोर द ऑनबोर्डिंग द सप्लायर। हम्म. तो आपको वो क्वेश्चन बनाना हम्म. पड़ेगा कि नाउ यू फॉर द दैट एनडीए पर्पस ऑफ दैट क्वेश्चन, यू हैव टू डिफाइन दैट क्वेश्चन हियर कि मतलब यू नीड टू साइन दैट, काइंडली प्रोवाइड योर एनडीए साइन डॉक्यूमेंट।
attach this document is attached itself. So वो क्या करेगा, वो डाउनलोड करके उस फॉर्म को he will sign that document and he will upload that. So ये रिक्वायरमेंट आपको क्लाइंट से लेनी पड़ेगी, स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक क्लाइंट, ठीक है। ये आपका ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। यू कैन सी दिस ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन, ऑर्डर फॉर परचेज किस में लेना चाहते हैं, आपका रेमिटेंस एड्रेस क्या है, ठीक है। ये सारा लेने के बाद वो करने के बाद ये सारा चीज, ये सारा जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन देख रहे हो ना आप, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट में आप ये देखोगे। अगर आपके पास अरीबा का अमेजन का एक्सेस है किसी का आपके पास? मेरे पास सबका ही एक्सेस है। मैं वही आई वाज अबाउट टू आस्क यू। तो नील, इन केस इफ आई वांट टू चेक लाइक व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चनर्स और द एग्जैक्टली दिस व्हाट यू आर शेयरिंग, राइट? कैन आई चेक दैट if I have the ANID everything? या थ्रू द ANID इट इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब आप क्या मतलब ये बोल रहे हो कि ये जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास आपकी कस्टमर, हाँ मेरे पास कस्टमर का रियल का एक्सेस है, राइट? हाँ आई हैव एवरीथिंग। सो कैन आई चेक दिस क्वेश्चनर लिस्ट, उस पर्टिकुलर कस्टमर ने क्या इनेबल कर रखा है? इज इट पॉसिबल? नहीं, अभी क्या होगा ना, ये अभी मैं आपको ये क्लियर करता हूँ। ये जो रजिस्ट्रेशन क्वेश्चनर है ना, अभी आप एज ए बायर यू हाँ कैन एक्ट एज ए, ठीक है, यू कैन एक्ट एज ए सप्लायर, ठीक है। हाँ। एक्ट एज ए सप्लायर जैसे करोगे ना, तो आपको वो सप्लायर का सारा डेटा यहाँ पे दिख, मतलब ये जो क्वेश्चनर है ना जो आप उसको भेज रहे हो, ये आप देख सकते हो एज ए बायर हाँ पोर्टल इटसेल्फ, नॉट फ्रॉम द लॉगिन फ्रॉम दैट पोर्टल। आप बायर, जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे यू कैन सी माई स्क्रीन, देखो आपको ये जो स्क्रीन है ना, लेट मी फर्स्ट फिनिश दिस वन। हाँ। ओके ओके। I will show you. I will, what you will do now, I will just come here, I will just summary, I'll click action, 1 second, edit overview on here. So whatever we are doing in this is everything is getting captured in the logs, right? Yeah, it is, everything is like, So in case if I want to check any Amazon's buyer, right, which currently they are transacting, and if they are hmm, SLP deployed, implemented. So hmm, in case, right, if I want to export or just to check the configuration in the hmm, SLP, I can check hmm. it, right? Yes, you can check The it. yeah, it will capture in the logs, right? Yeah, 1 second. इन्होंने पब्लिश का बटन भी डिसेबल कर रखा है ना, ये सब इनका ये अपना एक्शन के, ओके फाइन, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो आप कैसे देख सकते हैं ना, अभी सप्लायर वाले को ना, Mm. देखो आप अगर, Currently, what you are deploying, Neil? Currently, मैं any करंटली अभी solution you are doing? या एमएस का इन्हांसमेंट देखता हूँ, जैसे कोई भी चेंज रिक्वेस्ट आया ना तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करना, हाउ Oh, okay. सॉल्यूशन एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़। तो अभी आप इसमें आओगे, ठीक है, यहाँ पे आप हाँ देखो एडमिनिस्ट्रेशन में आके यहाँ पे सप्लायर एंड कस्टमर मैनेजर, ये आपके पास रोल्स होना चाहिए बिफोर चेकिंग दैट वन, ठीक है। ये जो सप्लायर का okay. यूजर देख रहे हो आप, ये सप्लायर यूजर है, इट इज नॉट योर इंटरनल यूजर, इट्स अ सप्लायर यूजर, ठीक है। Correct. हाँ अभी आप इसमें सर्च करेंगे उस सप्लायर का ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट डाल के, जो भी सप्लायर होंगे एक्टिव दिख जाएंगे इसमें। लेट मी सी, अगर ये देखो इतने सप्लायर है ना, सपोज मैंने कल अपना एक बनाया था, क्या नाम से बनाया था, डू यू रिमेम्बर दैट, सृजन करके ऐसा कुछ बनाया था ना। I think you can sort on the date, right? You will get. या एंड दैट आल्सो यू कैन गेट इट, ये देखो आप आके, ठीक है। I use this for catalog logs pulling, POSR, everything. या तो आप ये देखो, इधर से आएंगे आप, इधर ये आप ऐड टेस्ट करोगे हाँ तो आपको वो हाँ करेक्ट। दिख जाएगा आपको यहाँ पे सप्लायर का, ये इवेंट आपको ये दिख जाएगा। ये सारे क्वेश्चनर आप सप्लायर साइड से देख रहे हो, लेकिन आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, समझ रहे हो, यू कैन नॉट रिस्पॉन्ड इट। हाँ हाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, क्या होता है ना, कई बार जब भी सोर्सिंग का या गाइडेड सोर्सिंग का प्रोजेक्ट बनता है, तो उस केस में क्या होता है कि सप्लायर जो है मल्टीपल कॉन्टैक्ट देता है, कि सपोज मैंने अपना सप्लायर कॉन्टैक्ट बनाया और उसमें 10 कॉन्टैक्ट डाल दिए, ठीक है। ओके
10 कॉन्ट्रैक्ट्स में 5 आर आउट ऑफ ऑफिस, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। ओके, अब ओके, अगर आप बायर हो, एज ए बायर इफ यू आर एक्टिंग, तो आपको अगर कुछ नहीं मिलता तो हाउ यू विल प्रोसीड। सो पहले आप उस सप्लायर का प्रोफाइल चेक करेंगे, ठीक है। आइदर दैट ओके, सप्लायर रजिस्टर्ड ऑन अरीबा पोर्टल या नॉट। इफ सप्लायर इज ओके, नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है, तो फर्स्ट विल टेक दिस रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या होता है ना कि आपका रजिस्ट्रेशन एक इनिशियल लेवल पे आपको पहले जो इंटरनल डॉक्यूमेंट बायर्स होते हैं अप्रूव करेंगे, फिर फाइनेंस टीम फाइनली अप्रूव करती है पोस्ट वैलिडेशन ऑफ ऑल द बैंकिंग डिटेल्स, ठीक है। ओके, जब वो सप्लायर अरीबा में रजिस्टर हो जाएगा तो आप देखोगे कि उसके प्रोफाइल में जाके क्या का कंटेंट है सप्लायर का, मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या क्या है उसमें, ठीक है। यू चेक दैट। जब आप डिटेल्स को कॉन्टैक्ट देखोगे वहाँ पे, आई शो यहाँ पे आप सपोज दिस इज द सप्लायर, राइट। अभी अभी आपने इसका क्वेश्चन है तो इवेंट ओपन कर दिया। अब आपको उसको ये बताना है कि यू सी देयर इज अ रिस्पांस टीम, यू कैन सी इन द एक्सप्रेस, ये आपको एक्सेस रहेगा। यू कैन ऐड योर कॉन्टैक्ट हियर, ठीक है। अगर मान लो इस सप्लायर के लिए मैंने एक ही कॉन्टैक्ट किया था, दैट्स व्हाई माय नेम इज ओनली कमिंग, ठीक है। वंस यू ऐड मल्टीपल सप्लायर, ऐड देयर कॉन्टैक्ट डायरेक्टली फ्रॉम हियर, ठीक है। आप जब उसको ऐड करोगे ही कैन आल्सो रिस्पॉन्ड एंड एक्ट एज, ठीक है। ये इवेंट वो भी रिस्पॉन्स कर सकता है। तो ये वन ऑफ द करेंट इशू आई कैन से, राइट। तो ये सारी चीज़ें आती हैं ओके। सप्लाई। Now let's go to the template here. तो आपने उसे चेक किया क्या सृजन से, किया आपका एक मंथ का एक्सटेंशन दिखा रहा है वहाँ पे, आपने 2 महीने की बात की हुई क्या उससे, मतलब हाँ, ट्रेडिंग मैंने सेंटर। वही वो बोला था अभी। हाँ, अभी बोला ही इज ड्राइविंग, मतलब कुछ था कि लेट्स डिस्कस टुमारो। तो पता नहीं क्या बात करूंगा कल मैं जब अभी कॉल किया था 15-20 मिनट्स बैक बिफोर कमिंग टू दिस सेशन। या आई थॉट वी हैव ओके। एग्रीड एंड दैट्स, मतलब थोड़ा अजीब लगा मुझे, बट आई विल डिस्कस। यूजुअली लाइक होता है 35-40 आवर्स होता ही है, राइट? इतना बड़ा वास्ट है, इट कैन नॉट बी कंप्लीटेड इवन इफ यू गिव मी 10 hours every day, राइट? बहुत टॉपिक रहता है इसमें। आपको ऐसा नहीं है कि आप इसको इजीली ले लो। अगर आप इफ यू आर प्लानिंग टू गेट इनटू दिस, आपको हर एक चीज़ थोड़ा सीरियसली लेकर करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि प्रोजेक्ट हम्म, हैम्पर होगा, फिर आपको थोड़ा ऐसा नहीं है। बट ऐसा नहीं है, आप जब भी किसी बिग फोर से ऐसे में इसमें जाते हो ना, तो यू गेट लॉट ऑफ थिंग। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, आपको बताएगा नहीं। इफ यू आर मच इन्वॉल्व देन वी हेल्प यू। हम्म। इट इज़ वेरी स्लो। आई थिंक इट्स अ संडे है ना, तो संडे को थोड़ा रीवा का। अभी नाउ SAP consultants, yeah, SAP consultants are not doing anything, right, in terms of implementation, correct? SAP employees. हाँ, मतलब आप बोलो तो देखो एमएम का रोल तो वही आता है। जैसे कि एसएपी एमएम कंसल्टेंट की बात करो ना, तो उनका रोल एक स्पेसिफिक रोल है। मतलब अभी मैंने बहुत सारे एमएम कंसल्टेंट को देखा, जैसे कि इन माय टीम आल्सो आई हैव सीन मोस्ट ऑफ देम कि एस4 पे जो काम करते हैं, दे आर नॉट अवेयर विद दैट अरीबा, ठीक है। तो उनको भी यहाँ से बोला जाता है, पार्टनर साइड से ईमेल जाता है कि यू आल्सो हैव टू लर्न एवरीथिंग, यू हैव टू नो रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी मॉड्यूल। मतलब आपको अरीबा भी आना चाहिए, एस4 भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अरीबा जानते हो एस4 नहीं जानते, एस4 जानते हो अरीबा नहीं जानते। यू हैव टू बी देयर फॉर ऑल। ऐसा नहीं कि कोई क्लाइंट रिक्वायरमेंट आई, हम्म, आंसर दैट क्लाइंट रिक्वायरमेंट, यू कैन नॉट स्पेसिफाई दैट रिक्वायरमेंट। तो वो सारी चीज़ें नहीं। अब अभी आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्लैंक हो। ये yeah, सर। no, initially I think now we are not getting any true deal. I'm saying from SAP perspective, like SAP, my teammates, right, they are in the sourcing or in other stream. So now what ओके। they have said that Raju, we are not doing implementation part. Everything is outsourced to third party like PwC, KPMG, Deloitte. So initially, in the past, they used to do that, but now it's more of a like best preferred success consultant that they advise what are the best practices, but they don't do the implementation part. So that is very uh, weird. अब अभी अभी क्या हो गया ना, सो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट आई सी ना, देयर इज अ कमिंग विद इट्स एमएस रिक्वायरमेंट। क्या होता है ना कि ऑलरेडी सपोज डिलाइट बेल्जियम ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर दिया नाउ,
एंड पोस्ट ईयर दे आर नॉट दे आर फेसिंग सच इशू, तो वो फिर से आते हैं कि नाउ वी नीड एमएमएस सपोर्ट एज वेल, तो फिर वो एज ए सपोर्ट के लिए ये लोग करते हैं। इनका काम क्या है ना, दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन गेटिंग द बिजनेस, राइट। वो बिजनेस लाए, फिर आपको डिप्लॉय किया, आइदर वो एसएपी सपोर्ट का बिजनेस हो, इम्प्लीमेंटेशन का थोड़ा काम हो, ये करना वो आपको करना है, यू हैव टू डू दैट, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि आपको कंप्लीटली, जैसे इम्प्लीमेंटेशन में मैंने देखा कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने इंडिगो का किया, तो इंडिगो में क्या था कि किसी ने किया था बट आधा अधूरा काम किया हुआ था, समझ रहे हो, मतलब उसका वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगर अच्छे पार्टनर से लेके नहीं कराओगे ना, तो दैट विल आल्सो ट्रबल यू टू योर बिजनेस एज वेल, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पैसे लगाए होते, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपका हो ही जाए सक्सेसफुल। तो मोस्टली आप यू कैन से कि एमएस प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, बट एसएपी पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करोगे कि बट हाँ वो कम तो हुआ है एक्चुअली, इधर भी मैं देखता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट उतना नहीं है जितना होना चाहिए, यू नो, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। 2-4 साल पहले था वो काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट आता था, आई हैव सीन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की ऑनगोइंग है इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, तो थोड़ा कम तो हुआ है, यू कैन से दैट, वो सारी चीज़, तो नहीं, वही रहता एम्प्लॉयज है। का भी काम कम हो गया है, मतलब एम्प्लॉय जो पहले इम्प्लीमेंट करते थे ना, अब वो इम्प्लीमेंट का हटा हम्म, के केवल एडवाइजरी वाला काम आ गया है। यू हैव टू एडवाइज व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट से या ना चेंज हो गया है, स्ट्रेटजी हाँ। चेंज हो गई है। हम्म, अभी हम ही लोग के एसोसिएट डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स जो रहते हैं, तो उनको भी जो मिला है कि काम की आप जो भी प्रपोजल आता है ना, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, ये मत देखो कि कौन सा प्रपोजल क्या है, ठीक है, तो आपको इन्वॉल्व होना है। और अभी हम लोग को जैसे ये काम करेंगे तो हम लोग को भी रहेगा कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क इन आरएपी प्रपोजल, यू कैन आल्सो अलोंग विद दैट आल्सो यू कैन वर्क, राइट। तो वो सब बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आपको करने को, लेकिन यहाँ पे सबके ऊपर तलवार है, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट। मैनेजर्स, पार्टनर्स, सबको अपना अपना बिजनेस ला के देना है, अदरवाइज दे कैन नॉट सस्टेन इन द कंपनी, ऐसा होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, डिपेंड्स, ये सब आप लोगों को पता होगा, बड़े लोग डिसीजन करते हो वहाँ पे, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन द हाई लेवल मैनेजमेंट, बट जो भी हमें काम आता है जस्ट डू इट, दैट्स ऑल, एंड यही सब जी, इतना चलता है पता अभी। है कि एएमएस का टीम काफी रैंप अप हो रहा है। लाइक वी हैव लॉट ऑफ ओपनिंग्स, स्पेशली इन एपीजे एपैक। तो अच्छा अच्छा मैंने एक्चुअली अप्लाई किया था लास्ट ईयर, तो उसमें मेरा इसलिए हो गया था क्योंकि आई हैव नॉट डन दिस कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। अच्छा। तो बट उसमें जो मुझे फीडबैक मिला था दैट दिस टीम इज हैज लॉट ऑफ वर्क। तो बहुत ज्यादा हेक्टिक है उनका टीम का स्केड्यूल, फ्रॉम एसएपी हम्म स्टैंडर्ड है, नॉट फ्रॉम द कस्टमर स्टैंडर्ड, फ्रॉम एसएपी स्टैंडर्ड। यू हम्म। लाइक काफी काम है, तो एक तरह से अच्छा भी है एक तरह से ये कि जो बहुत ज्यादा काम है कई लोगों को पसंद नहीं आता, राइट। हाँ वो चीज़ तो है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ये आप जो नॉलेज ले रहे हो ना, यू जस्ट मेक इट डाउन, और अभी आपको फ्यूचर में कभी भी अपॉर्चुनिटी मिली, यू आप ऐसा मत प्रपोज कर दो, आप जानते हो सब कुछ, ही बताओ आप उनको, लेकिन ऐसा नहीं करो कि हाँ मैं सब कुछ अकेले, आई कैन मैनेज एवरीथिंग, राइट। आई एम, इफ आई गेट चांस टू इंडिविजुअल मॉड्यूल, आई विल इम्प्लीमेंट इंडिविजुअल मॉड्यूल। अब वो ऐसा बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट ही होता है, वैसे आपको दो प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट में आपको दो मॉड्यूल नहीं देते कभी भी, ओनली वन इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट विल गेट। तो वैसा होता है कि मतलब आप ओके सोर्सिंग ओके। नहीं करोगे, एसएलपी करोगे तो एसएलपी करोगे, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो एसएलपी में और मतलब जैसे ये आपने बताया, इसके बाद क्या पार्ट है, टेम्पलेट के बाद क्या है नेक्स्ट मतलब, एसएलपी या का मोस्टली और भी क्या कुछ है है आप जहाँ पे हाथ जलते हैं, आई मीन टू से। देखिए एसएलपी में क्या है ना कि आप एसएलपी का टेम्पलेट समझ गए अच्छी तरीके से, सो यू गॉट टू नो अराउंड 50% आप जान गए, टेम्पलेट इज एवरीथिंग इन एसएलपी, मतलब एसएलपी क्या, सोर्सिंग कॉन्टैक्ट एवरीवेयर, इफ यू अंडरस्टूड हाउ टेम्पलेट्स वर्क, हाउ यू कैन कॉन्फ़िगर, दिस इज द टेम्पलेट, आपका ये है ना कि ये आप डिज़ाइन करो फॉर द क्लाइंट, नॉट फॉर योरसेल्फ, राइट, करेक्ट। यू आर डिजाइनिंग इट फॉर द क्लाइंट एंड यू आर गिविंग इट टू द बिजनेस। अभी क्या होगा ना कि जब आप सोर्सिंग का इवेंट बनाओगे ना, इसमें आई विल शो यू दैट टाइम, सो जब सोर्सिंग का इवेंट बनाओगे आप, तो वो सोर्सिंग का टेम्पलेट भी क्लाइंट के साइड से डिसाइड होगा कि हम लोग क्या बना के देने वाले हैं एज पर द क्लाइंट। सपोज आई एम वर्किंग फॉर द एस सी एल अपना टेक्नोलॉजी हिसाब से अपना टेम्पलेट डिज़ाइन करवाएगी आपसे, ठीक है। कोई हेल्थ केयर के लिए आप काम कर रहे हो, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए, तो वो आपका टेम्पलेट अपने हिसाब से बनवाएंगे, तो ये वेरीज अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री। एब्सोल्युटली।
तो वो आपका ये सारी चीज़ होती है। तो उसके हिसाब से तो टेम्पलेट का इसमें बड़ा रोल है। टेम्पलेट के बाद आपको बहुत सारे रोल्स हैं, एडमिन्स रोल्स, क्या-क्या रोल्स क्या-क्या काम करता है आपके लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो सब आना चाहिए। तो मतलब टेम्पलेट के अलावा आपका एडमिन्स रोल्स हैं, सारा एसएम एडमिन्स रोल्स हैं, आपका कोर एडमिनिस्ट्रेशन रोल्स है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आपका आईसीएम का जो रोल्स है, कॉन्फ़िगरेशंस पे जो पैरामीटर्स इनेबल करते हैं, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। तो इट्स नॉट ए ईज़ी टास्क कि आप वास्ट है थोड़ा-सा, आपको लेकिन टाइम देना होगा। यू हैव टू गेट, यानी कि आप जल्दी-जल्दी सीख लो, ठीक है, आप क्लाइंट नहीं, लोकेशन वही नील आराम से, लाइक वॉट एवर यू थिंक राइट, यू जस्ट गो विथ योर फ्लो, डोंट प्लीज, so whatever you think right, don't, I mean to say, don't skip anything, हुँ, whatever is relevant, right, important, or we do for a customer, because you are the person who is implementing, right, you या know in and out of everything या almost, right? So please, like अपनी पेस के हिसाब से, because I have to do revision as well. ये right? जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट भी कल दिया ना, वो फाइनल डॉक्यूमेंट जो आप कल हाँ आपने हाँ, देखा था वो डॉक्यूमेंट, दैट डॉक्यूमेंट आई हैव गिवन मैंने यू। बस एक कर्सरी लुक देखा था। अच्छा, तो आप या जब डॉक्यूमेंट को ओवरव्यू जाएँगे ना, तो उसमें वो क्लाइंट को जाता है, वो फाइनल डॉक्यूमेंट है, दैट इज़ योर फाइनल डॉक्यूमेंट। वो फाइनल दे दिया मतलब उसके ऊपर हम लोग का कोई चेंजेस नहीं है, दैट द पोस्ट वो साइन ऑफ होता है उसके बाद। ठीक है, वो दैट डॉक्यूमेंट इज़ अ ओके। फाइनल डॉक्यूमेंट पार्टिकुलर मॉड्यूल, कि हमने ये सॉल्यूशन दिया है, हम लोगों ने एज़ इज़ डिस्कस किया था, नाउ दिस इज़ आवर सॉल्यूशन। ये बीपीपी भी बनाना पड़ता है, यानी कि आपको कि कल सॉल्यूशन डिप्लॉय करो, यू हैव टू डू द एसआईटी टेस्टिंग, यू हैव टू डू द यूएटी टेस्टिंग, राइट? वो सारी हम्म चीज़ें करने के हम्म, बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना के सिस्टम में सारे स्क्रीनशॉट लेके उनको दोगे आप कि दिस इज़ आवर रिक्वायरमेंट। फिर आप अगर वो पूछते हैं कि मेरे को यूज़र मैनुअल भी बना के दो, यू हैव टू आल्सो गिव द यूज़र मैनुअल फॉर दैट। ठीक है? तो सर ओके ओके। तो ये ऐसा है, तो मतलब बहुत कुछ यूजर मैनुअल में ट्रेनिंग हुआ, राइट? ऐसा काइंड ऑफ, मतलब वो बोल सकते हैं कि मेरे को वीडियो का ट्रेनिंग भी चाहिए, मेरे को आपका पीडीएफ डॉक्यूमेंट का यूज़र मैनुअल चाहिए, यूज़र स्पेसिफिक चाहिए कि यूज़र कैसे एक जाएगा अरीबा सिस्टम, क्या रोल्स होंगे, किस प्रोफाइल के लिए बना रहा है वो सारी चीज़ें आपको मैनुअल्स बना के देना पड़ेगा। बट पोस्ट डूइंग ऑल दिस ओके। थिंग्स डन राइट, तो ये सारी चीज़ें तो वही है। अभी आप देखो यहाँ पे जब भी आप जो भी कोई चेंजेस करोगे ना टेम्पलेट में, तो ये नीड टू कम हियर एंड पब्लिश इट, राइट? वंस यू पब्लिश यू कैन सी दिस टेम्पलेट। अब देखो, दिस रिक्वेस्ट हैज बीन पब्लिश सक्सेसफुली, ठीक। अभी पब्लिश करने का मैटर ये हुआ कि अब आप आके चेक करोगे कि टेम्पलेट मेरा विजिबल हो रहा है कि नहीं, जब वाइल आई एम क्रिएटिंग टू सप्लाई रिक्वेस्ट, ठीक है। मैंने सप्लाई रिक्वेस्ट का भी पब्लिश किया, तो जस्ट फॉर चेकिंग जस्ट यू। तो अब देखो सप्लाई रिक्वेस्ट पे आप आएंगे, तो मेरे को अपना वाला टेम्पलेट दिखना चाहिए, अदरवाइज देयर इज रॉन्ग विथ समथिंग। देखो आ गया ना ये जो अभी मैंने पब्लिश किया, ये ऐड फॉरन। करके फॉरन वाला, ठीक है। ये सारी चीज़ें आनी चाहिए आपको, ये मैंने भी कुछ ऐड किया था एडिशनल, व्हाट इज योर क्वालिटी। पब्लिश करने का मतलब ये हुआ कि यू आर गिविंग दिस टेम्पलेट टू द क्लाइंट, ठीक है। दिस इज द रिक्वेस्ट फॉर्म, दिस इज आवर इंटरनल फॉर्म, दिस यू आर नॉट गोइंग टू, बट वट एवर द फॉर्म इज देयर यू हैव टू गिव टू द क्लाइंट। ठीक है, मतलब ये जाएगा आपको एज ओके। ए रजिस्ट्रेशन टेम्पलेट में, ठीक है। यू गॉट इट मैम। ऑलराइट, सो यही है, ये सप्लाई रिक्वेस्ट हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना, कोई भी पूछे आपको तो हाउ मेनी मॉड्यूल्स आर इन अपस्ट्रीम, यू हैव टू टेल सप्लायर मैनेजर। इस जो स्ट्रैटेजिक सोर्सिंग की हम बात करते हैं ना, उसमें आपका एसएलपी आता है, सोर्सिंग आता है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट आता है। दैट इज फॉर योर अपस्ट्रीम, मोस्टली इन द अपस्ट्रीम, ठीक है। डाउनस्ट्रीम में जो आप पी टू पी का, जिसमें बाइंग एंड इनवॉइसिंग बोलते हैं, आपका कॉमर्स ऑटोमेशन का, वो सारी चीज़ें बोलते हैं, वो चीज़ें मैं आपको हाई लेवल पे दिखा दूंगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा लेटर स्टेज पे, बट मेजरली अभी अपस्ट्रीम पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। आप आप किसी को ये बोलोगे ना स्टार्टिंग में टू इंटरव्यू एनी ऑफ द क्लाइंट कि आई नो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम बोथ, तो वो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, यू कैन नॉट सस्टेन ओवर दैट क्वेश्चन, ठीक है। आप उसको पहले दिखाओ आई एम एक्सपर्ट इन, आई एम गुड इन अपस्ट्रीम, उसके साथ जेन्युइन रहो, अदरवाइज ही विल नॉट हायर यू एनी टाइम, नो। करेक्ट करेक्ट, अगर हायर हो गया देन विल फायर यू। फायर फायर एब्सोल्युटली। 1 महीना 2 महीना 3 महीना देखेंगे आपको, फिर वो वही वैसा ही मेरा है। दोस्त हो चुका है एक्चुअली, कई दोस्त लोग, हालांकि वो हाल जला जला के सीखे फिर। ये भी है, अच्छा, तो आप स्ट्रेटजी उनको सही सीख के नहीं है। बताना है। नहीं, लेकिन आप अच्छा इन्वेस्ट करो, इट्स गुड थिंग। मतलब मुझे भी काफ़ी टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग आई लर्न अ लॉट, बट तो क्या होता है ना कि मैंने सर्टिफिकेशन वाले से ट्रेनिंग, जैसे आप मेरे से ले रहे हो, आई हैव टीम, मैंने अपना ट्रेनिंग जैसे हाँ आपसे हाँ। बहुत पहले ही लिया था, वाइल 10 years बैक ऐसा करके। तो एसएपी में थे, तो मैंने ओके। प्रपोज करके वो लिया था, दैट इज़ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। मतलब उस टाइम तो अरीबा बहुत ही लेटेस्ट था उस टाइम प्लेटफॉर्म, राइट? हाँ, बहुत सारी हॉट प्रॉपर्टी था, राइट। तो सब इंटरेस्ट भी रहता था।
तो ये अभी आप नील और कोई है आपके पास मतलब डॉक्यूमेंट जो मुझे पढ़ना चाहिए, कोई आप इफ यू कैन रिकमेंड एनी लाइक गुड चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, एनीथिंग लाइक वॉट एवर इफ यू कैन रिकमेंड कि राजू, इफ यू हैव एनी टाइम, स्पेयर टाइम अपार्ट फ्रॉम माई सेशन, यू कैन गो थ्रू दिस एज वेल, अगर कोई है आपकी नज़र में तो प्लीज फील फ्री टू तो शेयर सर। तो ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिया है ना एसएलपी का, बीबीपी वाला, उससे आप राइट। आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाउ एसएलपी वर्क्स। ठीक है। ओके। अगर अभी ये जो कंप्लीट पूरा सेशन वगैरह सारा जो फिनिश हो जाएगा ना, आई विल शेयर, आई हम्म। डोंट टेल एनीवन, इंस्टीट्यूट को आप मत बताना, बट सी मैं देखो शेयर करने के लिए उनको भी बोला है कि आई विल शेयर टू यू, राइट, आई विल शेयर यू दिस इज दैट, रिकॉर्डिंग। या दैट्स right. So I will share it. It's not like that. I will share with you, right? So that is there is no worry about it. ने इंस्टीट्यूट को भी बताया कि आई विल शेयर दैट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो स्टैंडर्ड व्हाट एवर द डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड शेयर विद यू, राइट, आई विल टॉक तो ओके। करूँगा, उसके लिए कोई इशू नहीं है आपको। तो और देखें तो ठीक है, तो यही बेसिकली ये सप्लाई रिक्वेस्ट का हो गया आपका। ठीक है, तो आप बीबीपी हाँ। पेज पर जाओगे ना, बिजनेस ब्लूप्रिंट जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिया है, आई कैन आल्सो ओपन हियर इफ यू वांट। व्हाट इज द डॉक्यूमेंट आई हैव गिवन यू, क्या दिया था मैंने आपको, स्टेरलाइट का ना। तो आपने अभी अभी शिफ्ट कंप्लीट करके मुझे सेशन दे रहे हो, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग? या इट्स नॉट लाइक मेरा शिफ्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इट विल कंप्लीट अराउंड 8 o'clock ना। तो जस्ट आई अपोलोजाइज। नो नो प्रॉब्लम, बट क्या होता है ना कि अभी आज क्लाइंट का भी उसका कुछ कॉल नहीं था, सो आई जस्ट टुक द डिसीजन टू टेक दैट। दोपहर में था तो आई जस्ट मॉडिफाई दैट टाइम, राइट। सो ऐसा रहता है, तो वही है। बाकी ओवरऑल यू हैव, जब भी आप एमएस प्रोजेक्ट में काम करोगे ना, तो यू विल गेट लॉट्स ऑफ रिक्वायरमेंट। एक दिन में आपको 4 5 6 रिक्वायरमेंट आते रहते हैं फॉर द चेंज एंड प्रपोज एंड एवरीथिंग। हाँ, मेरा मुझे पता नहीं इफ यू नो दिस गाय, कायो। कायो एक है एएमएस का मैनेजमेंट का, तो वो अच्छा। मेरे साथ अमेजोन का बहुत इशू आता रहता है एक्चुअली, तो आई डायरेक्टली कांटेक्ट हिम, hey कायो, टेक या दिस टिकट मैन, दिस बग, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, बट देन तो अमेजन में अपार्ट हाउ फ्रॉम लॉन्ग यू आर दैट, वर्किंग, अमेजन का भी आपको लॉन्ग टाइम कितना? टोटल मुझे हो गया अमेजोन लाइक 4 years, 4.5 year, बट एज अ ग्लोबल लीड इट्स ऑलमोस्ट 2 years, 2.5 करीब। ग्रेट ग्रेट, यू आर इन मेजर पोजीशन। राइट। हाँ, मुझे आई नो देयर क्लाइंट्स एंड एवरीथिंग, वो व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट इनोवेशंस दे आर गोइंग टू डू, बिकॉज मैं आई यूजुअली इन्वॉल्व इन द क्यूबीआर कॉल एज वेल, लीडरशिप कॉल, तो बट अच्छा। मुझे आई नीड टू लर्न एक्चुअली, वो मुझे सीखना है। दिस इज व्हाट द इंटेंशन कि मैं आपके साथ, आई एम योर चेला, यू कैन। चेला, यू आर ऑलरेडी गुरु, बट एनीवेज, बट क्या होता है ना कि नो नो। आप जो कुछ भी सीखते हो ना, आप उसको घर पे भी एक बार प्रैक्टिस किया करो। यू हैव टू हाँ प्रैक्टिस हाँ, ऑल दिस थिंग्स, राइट, अदरवाइज तो ये वॉट एवर पर्पस यू नहीं हैव होता। given, right, the access which he has given, I can replicate the same thing, right? Absolutely, absolutely, you can do it. You can do Yeah. this replication in this. I think I have not provided you this Excel, right? This Excel document I have not provided you, हाँ, एक्सेल में प्रोवाइड, but हाँ मैं पूछ, या नहीं किया, ये अगर आप आप ग्रुप में डाउनलोड कर डाल सकते दो। ओ सॉरी, हाँ डाल दो, यहीं ये पे डाल ग्रुप दो, में। डाउनलोड करते हैं, डालो। हाँ, ये वाली चीज़ है ना, तो ये मैं आपको डाल दूंगा। तो ये क्या है ना, मैंने क्रोम से लॉगिन किया हुआ है, ठीक है ना, जिसमें ऐसे नहीं जाएगा। आई विल पुट इट डाउन, ठीक है, ये करके ओके। क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसमें कुछ ये बेसिक नहीं है, यू कैन डिसाइड योर क्वेश्चन अकॉर्डिंगली, आपका जो भी है ना। अभी आप ये टेम्पलेट में जाओगे ना, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये जो टेम्पलेट में जाओगे ना, तो यू कैन सी दैट लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, कहाँ गया वो टेम्पलेट हमारा, मैनेज, इधर आप सी, इन्होंने तो बहुत ही मतलब ये देखा मैंने, बहुत लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए डाल रखा है टेम्पलेट, ठीक है। आपको पता नहीं किस में जाना है क्या नहीं जाना है, तो दिस इज द डेमो वन, तो आप ऐसे जाके आप ये सारे क्वेश्चंस आप चेक कर सकते हो क्या क्या इन्होंने बना रखा है। बट बेसिकली हम लोग को तो एसएलपी पे भी पहले फोकस करना है, देन वी विल सी दैट लेटर ऑन दैट, ठीक है। तो वो सारा सिमिलर वे में आपका रजिस्ट्रेशन भी होगा यहाँ पे, यू कैन सी दैट रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे तो मैं ठीक है रजिस्ट्रेशन का भी वैसा ही दिखा दूंगा आपको, जैसे अभी हम लोगों ने रिक्वेस्ट का देखा, ठीक है। लेट्स सी दैट रजिस्ट्रेशन पार्ट का क्या होता है। आई जस्ट एडिट दिस वन। यू आर फ्रॉम डे वन, यू आर फ्रॉम इन डेलॉइट ओनली, और लाइक पहले और भी कहीं क्लाइंट पे भी किया है? पहले था, आई वाज इन केपीएमजी फॉर 2 years एंड प्रायर टू दिस। पीएनजी।
Okay. KPMG. Yeah. KPMG. Okay. KPMG. So उसमें था मैं, so उसमें के बाद फिर I joined the Deloitte as well. तो आपने पूरे, आप तो पूरे हाथ वाथ जला के आए हो। आपको सब पता है। स्टार्टिंग में जहाँ भी जाओ you have to face the struggle and everything, right? वो सब चीजें रहती है, आपको लर्निंग में टाइम डालना है, अदरवाइज देयर इज नो सर्वाइवल। तो राइट सब दिखता है बाहर से, एवरीथिंग इज वेरी गुड, राइट? वंस यू कम टू द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, वंस दे प्लेस इन द प्रोजेक्ट, यू हैव टू रिस्पांसिबल फॉर समथिंग। तो यही, अब देखो ये सप्लायर रजिस्ट्रेशन का आपका टेम्पलेट है। सेम वे जो भी टेम्पलेट्स आपका होता है, व्हाट एवर द टेम्पलेट्स यू आर हैविंग ना, आप यू कैन मॉडिफाई फ्रॉम हियर, एक्शन पे जाके ना, ये एडिट प्रोपोज करने का मतलब यू कैन चेंज एनीथिंग फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट हियर। यहाँ पे आप कुछ भी बदल सकते हैं एडिट प्रोपोज करके अपने हिसाब से। यू कैन मॉडिफाई योर रिक्वायरमेंट्स, यू कैन मॉडिफाई योर रैंक एंड एवरीथिंग यू कैन डू। दिस एक्सेस कंट्रोल मींस इज पार्टिकुलर स्पेसिफिक टू सम रोल्स, बट ये ज़्यादातर नो रिस्ट्रिक्शन हम लोग रखते हैं, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट करोगे तो ये टेम्पलेट होगा ना, एक रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, मतलब यू आर रिस्पॉन्सिबल, दिस आर द एक्सेस कंट्रोल यू कैन अप्लाई, बट ये जो ठीक है। So now come to the documents part. Here you can see there is a two documents you can see, right? One is your internal registration, another is supplier registration question. Internal में आपको वही रहता है, आपका जो internal mapping करना होता है। I will show you this one, what the contents here, internal registration question. Come to the contents part, you see general information, company code information, ये हम लोग internally prepare करते हैं to map that field, right? ये मैंने आपको जैसे बताया था लास्ट, जैसे कोई मैप करना है, किसी का जीएल अकाउंट मैप करना है, वो कैसे मैप होगा। तो ये इंटरनल क्वेश्चनर में इसलिए रखा जाता है कि जो भी डेटा हम लोग यहाँ से सेंड करते हैं ना, वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिंक करे टू द S4 सिस्टम, ठीक है? क्वेश्चंस आप आके यहाँ पे एडिट करके यू कैन मॉडिफाई दैट क्वेश्चन। सपोज क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि मेरे को विथ होल्डिंग टैक्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? विथ होल्डिंग टैक्सेस क्या होता है ना, विथ होल्डिंग टैक्सेस में क्या होगा कि आपको वो लोग ये ऑफर नहीं करते, अरीबा डज नॉट ऑफर एनी स्टैंडर्ड फुल फील्ड फॉर विथ होल्डिंग टैक्सेस, ठीक है? इस केस में क्या होगा कि वेंडर का टैक्स इन्फो फील्ड होता है, ठीक है? उस वाले केस में आप उसका टैक्स मैप कर सकते हो, बट विथ होल्डिंग टैक्स के लिए क्या रूल्स है कि आपको यू नीड टू कस्टमाइज दैट फील्ड। तो पहले वो फील्ड आपको कस्टमाइजेशन के थ्रू क्रिएट करना होगा, है ना? वो मैं आपको लेटेस्ट दिखाऊंगा हाउ वी कैन कस्टमाइज दोस फील्ड अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो। लेकिन जनरली कोई भी क्लाइंट उतना पैसा पे नहीं करना चाहता, दे वांट टू गो विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ओनली, ठीक है? क्योंकि जो भी रिक्वायरमेंट वो डालेंगे दे हैव टू पे लॉट्स ऑफ अमाउंट, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें उनको करना पड़ता है, अदरवाइज यू नीड टू मैप दिस फील्ड। सो मैंने भी फील्ड का एक्सप्लेन किया आपको, ये सारा फील्ड आपको मैप होना चाहिए। कंपनी कोड का ये होना चाहिए, कंपनी कोड इज नथिंग लाइक दैट योर, ये आपका ईआरपी का डेटा है सारा, 1700 अकाउंटिंग क्लास, ये पेमेंट टर्म्स वगैरह सारी चीज़ें। अगर ये कोई भी डेटा अगर ये गलत चला जाता है इन स्पोर्टेल, ये आपका सिस्टम वो फेल हो जाएगा वहाँ पे, है? जब So आप this data is like automatically synced from ERP? यस 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 Auto sync? आप ऑटोमेटिक सिंक। सो ये आपका ऑटोमेटिक सिंक होता है, जब भी आप ये कॉन्फ़िगर करके टेम्पलेट रेडी करके उनको दे देते हो सारा, दिस विल बी ऑटोमेटिकली सिंक, डोंट नीड टू डू एनीथिंग हियर। बट एज ए बायर, बायर अगर मुझे मॉडिफाई करना है, सपोज मेरा कोई ये बैंक ट्रांसफर की जगह मेरे को चेक लेना है, तो ही कैन मॉडिफाई दिस इंटरनल क्वेश्चन एंड ही कैन डू इट एज पर द सप्लायर रिक्वायरमेंट। यू कैन नॉट गो बैक अगेन एंड अगेन टू सप्लायर कि भैया मेरे को आई जस्ट दिस डिटेल्स टू बी मॉडिफाई फ्रॉम देयर एंड ओनली, बट दे कैन आल्सो ड्रॉप कि मुझे ये चेंज करके यू कैन फ्रॉम द इंटरनल क्वेश्चनर के जो भी आपके पास एक्सेस होगा यू कैन मॉडिफाई द इंटरनल क्वेश्चनर एज ए बायर एंड यू कैन अपडेट दिस क्वेश्चन, ठीक? और ये सारा आपका देखो आ रहा है परचेसिंग ऑब्जर्वेशन फील्ड यूएसटी, ये सारी चीज़ें आपकी फील्ड्स उसी से आ रही है। तो ये आप एक बार गो थ्रू करेंगे ना राजू, तो आपको ये आइडिया होगा कि हाउ दिस फील्ड्स आर वर्किंग, ठीक है? और जो आपने डॉक्यूमेंट्स की बात कही ना, ये एक बार आप बीबीपी को गो थ्रू करो एक बार, समझे आप? ठीक है ठीक है ठीक है, देन आई अब मैं आपको अभी 10 डॉक्यूमेंट अभी दे दूं, इफ आई प्रोवाइड यू 10 डॉक्यूमेंट्स एट अ टाइम, यू चूज कौन सा पढ़ूं कौन सा नहीं पढ़ूं, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड, राइट? करेक्ट ये होते हैं, आप टाइम निकालो थोड़ा उसके लिए। तो मेरे पास डॉक्यूमेंट बोलोगे मैं तो आपको 100 डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं ठीक है आई विल गो थ्रू इट टुडे ओनली। या आप उससे जाइए उससे। तो लेट्स गो बैक, ये हुआ अभी सप्लाई रजिस्ट्रेशन का पार्ट है हमारा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो विल गो एंड एडिट दिस क्वेश्चन। सप्लाई रिक्वेस्ट में रहता है आपका, सप्लाई रजिस्ट्रेशन में भी सेम रूल्स आपको रहेगा। इसमें बस ये रह जाता है कि आपका कब पब्लिश करना चाहते हो इस टेम्पलेट को। पब्लिश मीन्स नथिंग, इट्स यू आर जस्ट
पोस्ट अप्रूवल क्या होता है ना कि डायरेक्ट चला जाता है आपको सप्लायर के लिए, मतलब बायर के पास आएगा, अप्रूवल करेगा, देन इट विल सिंक। ठीक है, वो जैसे आपने जैसे सपोज उसने मेरे कंटेंट कर, दिस आर द कंटेंट फ्रॉम द सप्लायर साइड, तो सप्लायर क्या करेगा, जब क्वेश्चन फिल आउट करके देगा कि नाउ आई एम फिलिंग माय डिटेल्स, दिस आर द सप्लायर डिटेल्स, ही इज फिलिंग ऑल द डिटेल्स और कंपनी के नॉर्म्स को पूरा करके दे रहा है, देन आई विल अप्रूव इट एज ए, ठीक है, आई विल अप्रूव एज इट बायर। लेकिन मैं एज ए बायर ये अप्रूव तो कर दूंगा, लेकिन इसके बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को दिस डिटेल विल बी वेरीफाइड बाय द फाइनेंस टीम। तो फाइनेंस किधर से इसको वेरीफाई करेगा, फाइनेंस विल वेरीफाई थ्रू द योर अप्रूवल मैट्रिक्स, जो अप्रूवल मैट्रिक्स में फाइनेंस का टीम का बंदा होगा, ही विल वेरीफाई ऑल द डिटेल्स, एंड इफ देयर इज ए मिसिंग एनी डेटा, सपोज द सप्लायर इज फ्रॉम योर फॉरेन कंट्री, ठीक है, तो फॉरेन कंट्री से तो ही इज मिसिंग सम डिटेल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, सपोज स्विफ्ट कोड नहीं डाला है तो वो सप्लायर को देना है, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, दीज आर द मैंडेटरी फील्ड टू इंटीग्रेट इनटू द S4 सिस्टम। आपका बैंक का डिटेल्स हो गया, ठीक है, बैंक डिटेल्स में आपका हो गया, बैंक का डिटेल्स में आप लोग क्या क्या मैप कर सकते हैं, स्विफ्ट कोड कर सकते हैं, कंट्री कोड हो गया, ये सारी चीज़ें आपको डालना जरूरी है, अदरवाइज इट विल नॉट सी, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिटेल्स को सप्लायर प्रोवाइड करेगा, आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है, क्योंकि जो भी डेटा S4 में रहता है ना, वो ये जब इधर से डेटा भेजोगे ना S4 में, तो ये वैलिडेट ऑल दिस फील्ड, ठीक है, कि ये इतने डिजिट का बैंक नंबर है, अलाउड होगा एज पर टेम्पलेट वी हैव कॉन्फ़िगर्ड, राइट, अगर अलाउड होगा तो ही विल पास इट एंड सिंक इट। अदर अगर 11 सीरीज का बैंक अकाउंट नंबर है, चाहे IFSC इंडियन करेंसी के हिसाब से, तो उसमें क्या होगा कि अगर 12 डाल के भेज दोगे तो दैट कोड विल बी फेक, बट वी हैव आल्सो गिवन द लिमिटेशन टू द अकाउंट नंबर, वी हैव गिवन द लिमिटेशन टू द स्विफ्ट कोड, वो सारी चीज़ें होती हैं, एक लिमिटेशन होता है स्टैंडर्ड फील्ड्स का, ठीक है, तो ये सारी स्टैंडर्ड फील्ड्स हैं, मैं आपको दिखा दूंगा हाउ टू मैप ऑल दिस फील्ड्स, सो आप करके उसमें ये सारा चीज़ मैप होता है, ठीक है ना, ये आपका नो रिस्ट्रिक्शन रहेगा, विजिबल टू पार्टिसिपेंट ये रहेगा, तो ये आपको एक बार देखना पड़ेगा, गो थ्रू करो आप एक बार सारे चीज़ों को, और डेफिनेटली। ठीक है ना, ये सारा चीज़ रहता है। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि जो भी हम सप्लायर रजिस्ट्रेशन में बनाते हैं, वो सप्लायर को फिल करके सबमिट करना है बायर को, दैट्स ऑल। एंड मैं अगर आप एज ए सप्लायर काम कर रहे हो तो आप क्या क्या उसको डिटेल देना चाहोगे टू ऑन बोर्ड इन द अमेजन साइट के लिए, कि मेरे को अमेजन पे उनका सेलर अकाउंट बनना है, ठीक है, तो आपको क्या क्या डिटेल्स देना होगा, दैट इज सप्लायर इटसेल्फ। सो आप एज ए सप्लायर दे सकते हो, उसको बैंक डिटेल दोगे, अपना पेन डिटेल्स दोगे, अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन दोगे, आपके पास कोई कंपनी है तो यू विल प्रोवाइड योर कंपनी डिटेल्स एज वेल, तो सारी चीज़ें प्रोवाइड आपको, और वो बायर आप अप्रूवल अमेजन वाला अप्रूव करेगा कि नाउ सप्लायर प्रोवाइडेड ऑल द डिटेल्स, अप्रूवल्स नाउ ही कैन डू द बिजनेस विथ मी, सो नाउ यू विल सेंड द RFQ, RFP, whatever you want, you can send it through the supplier. That's all is the purpose of the supplier registration question. ठीक है ना, तो ये सारी क्वेश्चन है, आप यहाँ पे जाके इसमें सप्लायर रजिस्ट्रेशन में आके यहाँ पे ये सारा क्वेश्चन आप ऐड करके देख सकते हो, इसमें यू कैन ऐड ऑल दिस क्वेश्चन कैसे काम करता है, ठीक है, ये सारा चीज़ें ये क्वेश्चन आप शेयर कर सकते हो, मैं एक्सेस करता हूँ। मैं आपको भेज दूंगा, डोंट वरी, मैं आपको भेज दूंगा ये क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा करता हूँ, लैपटॉप पे लेना ये करना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन नॉट। अच्छा, ईमेल अपना आपका डेफिनेटली प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस ना, मैं आपको उस पर डाल दूंगा एक बार, वो टेस्ट कर देना, ठीक है, मैं इसको भेज दूंगा, तो इतने हिसाब से ओके, मैं आपको व्हाट्सएप में करता हूँ, ठीक है। हाँ। और ये स्टैंडर्ड, दिस आर द स्टैंडर्ड वन, ये आपका ये नहीं कि मेरा बनाया हुआ, दिस इज नॉट माय डॉक्यूमेंट एक्चुअली, दिस इज द स्टैंडर्ड फील्ड, करेक्ट। ठीक है ना, तो आप देखना चाहते हैं यू कैन, यहाँ पे ऐसे करके कंडीशंस हैं सारी इसको बोलते क्या है, एनेबल रिक्वायरमेंट सेशन वाली बुक है, क्या है इस शीट पर्टिकुलर? रिक्वायरमेंट बुक इटसेल्फ, यू कैन कॉल इट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, तो रिक्वायरमेंट बुक ही होती है, ये सप्लायर का रिक्वायरमेंट बुक है। और जो इनेबलमेंट की बात कर रहे हैं ना, वो पूरा कंबाइंड आता है, इट इज नॉट, इट इज अ कंप्लीट होल पैकेज काइंड ऑफ सीट आता है वो, ठीक है, उसमें आपको SLP का भी मिलेगा, सोर्सिंग का भी मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट का, कॉमर्स ऑटोमेशन, सब कुछ, उसको इनेबलमेंट वर्क बोलते हैं, और ये सप्लायर का राइट ये कर सकते हैं, स्पेसिफिक टू दैट रजिस्ट्रेशन, स्पेसिफिक टू द रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो ये है। ओके, कम टू द कम लेट्स कम तो ये सारा आप एडिट करके देखना, यू कैन एडिट योर क्वेश्चन, यू कैन, जब भी आप एडिट करोगे ना, जब भी आप बनाना चाहोगे इस पे कोई भी टेम्पलेट पे, सो ये आप न्यू वर्जन करके ही करना, सपोज यू कम हियर, जब भी आप बनाओगे कोई टेम्पलेट, अगर आपको मुझे आई एम ओनली सीइंग योर एक्सेल, ओके, सो यहाँ आप देख सकते हो, राइट, एक्शन में या आई कैन सी, या
तो जब भी आप आओगे ना, मान लो सपोज मेरे को ये टेम्पलेट पे काम करना है, लेट्स गो बैक टेम्पलेट। मैनेज टेम्पलेट। कॉपी तो नहीं दे रहा मेरे को, सेकेंड। अभी क्या करना ना, अभी ये देखो, आपको ये कॉपी तो करने नहीं देगा मेरे को यहाँ पे। आई डोंट नो व्हाई दे हैव आई मीन लाइक दिस कि ठीक है ना। आप क्या करना है इसमें कि ये जो मेरा टेम्पलेट है ना, यू कैन सी इट राइट अंडर द जीपी आर्टिस्ट, ठीक है। अभी आप इसके अंदर जाके ओपन करना। आप इसको पहले दो चार, ये रिक्वेस्ट का फॉर्म है, ठीक है। पहले दो चार क्वेश्चन आप ऐड करना इसमें एडिट करके, ठीक है। और जब देखो आपको एडिट ऑप्शन अभी नहीं दे रहा, यू कैन सी ओनली द व्यू डिटेल्स इन दिस केस। क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी में आइए यहाँ पे, क्लिक ऑन एक्शन, इसमें आप न्यू वर्जन करोगे ऑलवेज, ठीक है। इनएक्टिव करोगे तो ये टेम्पलेट इनएक्टिव हो जाएगा, इट विल नॉट बी विजिबल टू एनी और नॉट टू, सो ये नहीं करना ठीक है। आपको। न्यू वर्जन करेंगे सो यू कैन एडिट दिस डॉक्यूमेंट एंड यू कैन वर्क ऑन दिस डॉक्यूमेंट। वंस यू आर डन विद योर वर्क, देन आपको अगेन यहाँ पे आओगे, पब्लिश बटन आपका इनेबल हो जाएगा, then you can publish the document to check over there, right, at the time of creation. Similar way for the registration का भी है आपको, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इज नाउ इनेबल एक्चुअली, तो ये आपको उसको एडिट करके यू कैन एडिट योर क्वेश्चन, यू कैन एडिट योर रिक्वायरमेंट, आप देख सकते हो, ठीक है क्या है, ये सारी चीज़ चेक करके। ठीक है। Let's one second, I'll show you one of the video. I can, that is a small video. You have some YouTube link, राज, की आपके पास कुछ यूट्यूब्स के लिंक पड़े हैं क्या, मतलब आपको चाहिए तो आई मेरे कैन। पास, हाँ अगर भेजो तो अच्छा। मेरे पास जारा टेक का है एक, अच्छा। और एक कोई रोहित कुमार करके है। हम्म। बस ऐसे ही, मतलब अगर आपके पास है तो प्लीज शेयर कर दीजिए। हाँ मैं कर दूंगा, कुछ यूट्यूब लिंक आपको शेयर कर दूंगा, उससे आप गो थ्रू करोगे ना, दैट अच्छे इज। अच्छे नाम कौन कौन से वैसे? सॉरी। मतलब अच्छे नाम कौन कौन से हैं अगर देखने हैं तो? एसएपी अरीबा का ही है एक्चुअली, एसएपी अरीबा का जो स्टैंडर्ड है ना, यूट्यूब पे है कुछ वीडियोस वहाँ पे, तो वो एसएपी अरीबा ही डालता है एक्चुअली, दिस इज नॉट डन बाय एनी ऑफ द यूट्यूबर्स, तो वो आपको यूट्यूब से मिल अच्छा। जाएगा। तो मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगा, यू कैन गेट टू दैट डिटेल्स। और लेट मी ओपन, क्या था आपका, एक सेकेंड, ओपन। सो ये हमारा रिक्वेस्ट का ये सब। You see my screen right? या आई कैन सी। ठीक। सो ये अब देखो, ये रेसिपी 5 आप ये मिनट। शेयर कर सकते हो? हाँ आई विल शेयर इट, बट ये आई डोंट थिंक सो इट विल लोड होगा, मैं आपको इसमें अरीबा कनेक्ट के थ्रू निकाला है, सो यू कैन जस्ट रिव्यू दिस वाला, इट विल आल्सो बी रिकॉर्डेड इन योर सिस्टम एज वेल, या। तो आप ये देखो एक बार, रजिस्ट्रेशन का आई विल आल्सो शेयर विद यू, आप ये देखो तो। ओके। मतलब मुझे कुछ देख करना है अभी? नो जस्ट सी दैट, जस्ट सी, ये ही विल नो टेल आई यू। एम सीइंग ओनली दिस सप्लाई रिक्वेस्ट ओनली, इट फ्रीज देयर। या ओके, वन सेकेंड। आगे नहीं पहुंचा हूं। ये इंट्रोडक्शन आपको दिख रहा है ना टॉप पे, दिस इज अननोन। नहीं नहीं, कुछ कुछ नहीं है, केवल वो सप्लाई रजिस्ट्रेशन टैब के अंडर जो है ना, उससे पहला वाला स्टेप में हूं मैं एक्चुअली स्क्रीन में। अच्छा वन सेकेंड, वन सेकेंड, I am not able to see it. I will stop sharing again, I will share it. हाँ, अब स्टॉप हो गया। ओके। One second.
Yeah, I'm sharing again. Okay. You can see the screen now. हाँ क्या दिख रहा है आपको? सप्लाई स्ट्रैटेजिक सोर्सिंग सप्लाई रिक्वेस्ट डिजाइन मैट्रिक्स रहा ओवरव्यू, राइट? हाँ ये एसएपी का ही है, so you just it will explain in 5 minutes how this works, right? This template actually. ओके. कुछ बोल रहा है क्या? आवाज नो ऑडियो. यस, आवाज नहीं आ रही क्या? ना ना कुछ नहीं आ रहा है. अच्छा, नहीं आ रहा क्या? हाँ, दिस पॉसिबल. ओके. आप मुझे लिंक भेज दो, मैं देख लूंगा. मुझे एक्सेस होगा देख. इसका. आई एम श्योर. हाँ, इसका तो लिंक अवेल कनेक्ट का एक्सेस है आपके पास? हाँ है. कनेक्ट है ना? मेरे पास सारे एक्सेस है. कर्टेसी ऑफ अमेज़न. ऑलराइट, ग्रेट. सो these are, let me show that qualification वाला टेम्पलेट्स में क्या दिखता है ना, so I will show you that one as well. Share this. Now this supplier qualification template, right? या You can see it. So this is actually this qualification book, and you can refer to qualify as a supplier, right? So this SAP deployment process designed to prepare the SAP supplier request management for the customer deployment on their site. Means ये basically क्या काम करता है ना? You have to qualify few of the questionnaire based on the commodity regions and departments. ये क्या होता है कि कमोडिटीज़ की जब बात करते हैं ना, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट दिस कमोडिटी, इट मीन्स योर कैटेगरीज. whatever categories you have, whatever the regions, either you are dealing with the APAC categories या AC APAC जो भी होता है आपका, एशिया पैसिफिक हो गया और यूएस कैप का हो गया, ये सारी चीज़ें होती है रीजन्स के अंदर आती हैं. सो दीज आर द कैटेगरीज. तो ये बेसिकली क्वालिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि यू आर क्वालिफाइंग दैट सप्लायर particular to based on that categories. So you have to qualify that supplier. Just suppose you have IT supplier, right? So you want to qualify that supplier as a IT qualification. तो इन दिस केस क्या होगा ना, जब ये आप क्वालिफिकेशन का टेम्पलेट्स रन करोगे ना, मोस्ट ऑफ द सप्लायर डू नॉट टेक एज ए क्वालिफिकेशन, बस मोस्ट ऑफ कैन रिक्वेस्ट. So similarly, you will see that apart from this request registration, you will also see the supplier qualification template. तो इसमें क्या होगा कि आपको ये टेम्पलेट में सारे क्वेश्चंस रहेंगे. So ये you can see it in the document itself. So ऐसा दिखता है templates, right? You can see this was qualification template here. You can see. तो जैसे मैंने आईटी की बात की, तो ये क्वेश्चंस आप उसको एज यू कैन डिज़ाइन इन द टेम्पलेट इटसेल्फ कि ये क्वेश्चंस आप डाल के उसको क्वालिफाई कर सकते हो. ये भी जाएगा आपको रजिस्ट्रेशन के जैसे क्वेश्चन जाता है, वैसे क्वालिफिकेशन का भी सप्लायर को जाता है. या यू कैन आल्सो इंटरनली डिसाइड कि मेरे को रजिस्ट्रेशन के बेस पे उसको लेना है, एज ए क्वालिफिकेशन करना है, नहीं करना है. दिस इज फॉर योर इंटरनल रिक्वायरमेंट एंड आउट एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट बोथ. ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं. तो ये क्या होता है, इससे बेसिकली क्या निकलता है सप्लायर के पास से कि अगर मैंने आपको ऐसे आईटी का बिजनेस देना है, नाउ यू आर आईटी, यू आर डीलिंग विद लॉट्स ऑफ सब कैटेगरी. सपोज आप लैपटॉप के साथ ओके. मल्टीपल और भी बिजनेस वो सप्लाई करता है, तो उस कैटेगरी पार्टिकुलर कैटेगरी को क्वालिफाई करने के लिए कि आई एम ओनली गोइंग टू डू द बिजनेस विद दिस योर दिस कैटेगरी ओनली, नॉट फॉर सपोज आई वांट टू डू दिस बिजनेस ओनली द कंप्यूटर्स कैटेगरी, नॉट फॉर योर रेफ्रिजरेटर कैटेगरी. ठीक है, तो वो क्या कि इसमें क्वालिफिकेशन करना है फॉर दैट पर्टिकुलर लेवल. सो इस दिस क्वालिफिकेशन में क्या करेगा, ही विल आस्क सर्टेन क्वेश्चन टू द सप्लायर कि मेरे को आप क्वालिफिकेशन के लिए अपना क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट दे दो. ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर कैटेगरी कमोडिटीज़ का आपके पास
जो भी स्पेसिफिक टू दैट कैटेगरी आपके पास जो डॉक्यूमेंट हो, ही विल टेक दैट डॉक्यूमेंट, ही विल वेरीफाई इंटरनली, सारी चीजें करके ही विल क्वालिफाई दैट सप्लायर। वंस ही क्वालिफाई दैट सप्लायर, तो जब भी वो क्वालिफाई कर देगा वो पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कि आई हैव क्वालिफाई दिस डेल सप्लायर फॉर दिस आईटी कमोडिटी फॉर दिस कंप्यूटर कैटेगरी, ठीक है, तो उसके लिए उसने क्वालिफाई कर दिया, तो जब भी वो सप्लायर को सिलेक्शन करने के लिए जाएगा फॉर एनी ऑफ द इवेंट, सो दैट पर्टिकुलर कैटेगरी ही कैन सेट एज ए प्रेफर्ड सप्लायर। वो नेक्स्ट लेवल का जो मॉड्यूल आता है प्रेफर्ड में, उसको सेटअप कर सकता है कि मैंने ऑलरेडी क्वालिफाई कर रखा है दिस सप्लायर, आई विल मेक दिस प्रेफर्ड। तो जब भी वो बिजनेस करने जाएगा ना, वंस ही रन्स द इवेंट, तो ही कैन मेक दैट बिजनेस directly to that supplier. He will not get jump into the system, he will not search the supplier who belong to IT, who does not belong to IT, ठीक है, तो डायरेक्टली उसने ऑलरेडी क्वालिफाई कर रखा है, वो क्वालिफिकेशन में आपका ये होम टैब पे दिख भी जाएगा कि आई हैव क्वालिफाइड द सप्लायर। लेट मी शो दैट वन, यहाँ पे सी दिस वन। So this is mandatory for all the suppliers to prove that they are qualified. So it's a very rare, actually it's very rare, but I'm telling you Okay. because you should be aware with that, right? तो आप देखो, Right. अभी जो भी क्वालिफाइड कैटेगरी के सप्लायर होगा ना, वो यहाँ पे आपके आ जाएंगे क्वालिफिकेशन में, ठीक है, जैसे सप्लायर का नेम, कैटेगरी, देखो कोई करता नहीं है जनरली, दे डू नॉट प्रेफर रजिस्टर्ड के बाद वो जाते नहीं, क्योंकि दे वांट ऑल दिस क्वेश्चन इज टू बी सेट अप इन द रजिस्ट्रेशन टेम्पलेट ओनली, नॉट फॉर द क्वालिफिकेशन। अगर वो जाना चाहते हैं, ही कैन डू द सेम, कैटेगरी को चूज करवा लेगा, आपका रीजन चूज करा लेगा, बिजनेस कौन सा यूनिट है, ये सारी चीज़ें, और इसमें स्पेसिफिक कैटेगरी होता है कि कौन सा आपको किस लेवल पे इसको क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें करके यू जस्ट Okay. टेक। ये 4 क्यों लिखा आ रहा है? नहीं रीजन 4। ये क्वालिफिकेशन का दिखा रहा है, मतलब 4 सप्लायर्स हैं जो क्वालिफाई किए हुए हैं, बट लेटर ऑन Oh, ने डिलीट कर दिया है ऐसा करके, इसलिए दिखा रहा है जैसे 2 सप्लायर अंडर रजिस्ट्रेशन है, दिस इज द स्टेटस ऑफ द सप्लायर, ठीक है, okay, okay. स्टेटस ऑफ दैट, यू कैन सी दैट एक्शन। तो डिस्क्वालिफिकेशन में जैसे एक सप्लायर डिस्क्वालीफाई, लेट मी ओपन दिस सप्लायर, जो सप्लायर आप क्वालिफाई करते हो उस सप्लायर को आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते Okay. हो, राइट। ये देखो आप सपोज मेरे को ये सप्लायर को क्वालिफाई करना है, तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन प्लस साइन। So disqualify in the sense they cannot participate in this event, right? या इस मीन्स मतलब आपको क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन मतलब इफ इट डज नॉट प्रोवाइड ऑल द रिलेवेंट डेटा टू यू, यू विल डिस्क्वालीफाई द सप्लायर, मतलब आप उसके साथ Oh, बिजनेस नहीं करोगे, यू आर नॉट एग्री टू बिजनेस। तो ये oh, न्यू क्वालिफिकेशन मेरे को भेजना है, तो मैं ये किस कैटेगरी के लिए डील करता हूँ, मैं अपना कैटेगरी चूज कर लूँगा, जैसे अमेजन कैटेगरी है, तो अमेजन जिस कैटेगरी में आप डील करना चाहते हो, आप यू कैन चूज योर कैटेगरीज, ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें there is an option of blacklist also कि इनको blacklist किया जाए, any option? ब्लैक लिस्ट का भी ऑप्शन होता है, उसको उसको जो ब्लैक लिस्ट की बात करूँ उसको ब्लॉक सप्लायर बोलते हैं, ठीक है, एंड दैट Okay, okay, ब्लॉक सप्लायर क्या होता है ना, वो आपका आएगा रजिस्ट्रेशन क्वेश्चनर के अंदर ही। उसमें जब okay, इंटरनल क्वेश्चनर आप डिज़ाइन करोगे ना, तो उसमें आपको रहेगा कि वुड लाइक टू ब्लॉक दिस सप्लायर, सो तो यस करोगे तो वो सप्लायर होगा ब्लॉक हो जाएगा, मतलब ही विल नॉट एबल, एक तरह से ब्लॉक करने का मतलब वो इनएक्टिव हो जाएगा सिस्टम में, दैट सप्लायर विल बी अवेलेबल इन द सिस्टम बट इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिवेशन, नॉट इन द एक्टिव मोड, ठीक है। okay. And there has to be some criteria, right, for the Yeah, blocking. Or they, absolutely, it will ask, absolutely. right? You have to provide the reason for that, and कि क्यों ब्लॉक कर Okay. रहे हैं, क्या रीज़न है, there is some bad reputation for the supplier, there is some cheating from the suppliers, Mhm. that kind of Mm. things we have to put it down. So So yes, we can put everything in the template, right? yeah, you can put it there everything is template. But the request ये अप्रूवल आना चाहिए आपके पास कि हाँ, आप अगर डिस्क्वालीफाई भी कर रहे हैं तो आप उसको एक अप्रूवल पे भेज सकते हो कि रीज़न क्या है डिस्क्वालीफाई करने के लिए, तो दिस इज काइंड ऑफ आल्सो इन द टेम्पलेट साइड, तो आप ऐसा कर Okay. सकते Right. हो। यहाँ पे आप रीज़न सेलेक्ट करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे रीज़न एक ले लेते हैं, ठीक है, इसे भी ले लेते हैं, ठीक है, डेट में क्वालिफिकेशन का एंड डेट क्या डालता हूँ अपने अकॉर्डिंग, यू कैन पुट योर डेट, ठीक है, ऐसा करके ठीक है। जब ये क्वालिफिकेशन आप इनिशिएट कर दो ना, तो ये आपको देखो ये क्वेश्चनर आपको दिख जाएगा, कौन से क्वेश्चनर भेजने हैं आपको, क्वालिफिकेशन Mm-hmm. क्वेश्चनर भेजने हैं, डिस्क्वालिफिकेशन क्वेश्चनर भेजने हैं, मतलब जो भी आपके हिसाब से जो रहेगा, तो जैसे ये क्वेश्चन आप सेलेक्ट करोगे, ये आपका डॉक्यूमेंट विच ईमेल आईडी वांटेड टू सेंड, ठीक है, ये आपका क्वालिफिकेशन टेम्पलेट चला जाएगा सिमिलर टू योर रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन है, ठीक है, Mm. Okay. अकॉर्डिंग। एंड इसमें क्या होगा, अगर मान लो कि ये कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल है, आपको किसी दूसरे कॉन्टैक्ट पे भेजना है, यू कैन ऐड द कॉन्टैक्ट हियर एज़ वेल, ठीक है, Mm. क्वालिफिकेशन Mm. करके कॉन्टैक्ट ईमेल उसका डालिए, यू जस्ट मेक इट प्राइमरी कॉन्टैक्ट एंड यू कैन सेंड इट, इफ यू Mm. वांट टू मेक इट प्राइमरी दैट्स ओके, यू कैन आल्सो सेव इट, वो ऐड करोगे कॉन्टैक्ट, आप उस पर क्लिक करेंगे, यू कैन सेंड दैट क्वेश्चन इन,
जो एक्टिव कॉन्टैक्ट होगा यू कैन सेंड ओनली, राइट? दिस इज नॉट एक्टिव कॉन्टैक्ट। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है प्राइमरी कांटेक्ट में करना चाहिए, लाइक वेदर वी शुड एनेबल द टैप दिस प्राइमरी कांटेक्ट और नॉट? नो, प्राइमरी कांटेक्ट क्या होता है ना कि जो भी सप्लायर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो सप्लायर का फर्स्ट कांटेक्ट होता है ना, जो सप्लायर के थ्रू प्रोवाइडेड होता है, वो कांटेक्ट में बाय डिफॉल्ट चला जाता है एज अ प्राइमरी कांटेक्ट। ओके ओके ओके, अगर सप्लायर अंडरस्टूड। बोले कि आई वांट टू मैनेज दिस अकाउंट विद माय 5 टीम मेंबर्स, ठीक है, तो देखिए, अगर आप एज ए सप्लायर, अगर बिग बिजनेसमैन हो, अगर आप एज ए सप्लायर, बट यू कैन नॉट मैनेज ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम योर साइड ओनली अलोन, राइट? राइट राइट राइट। हायर द पीपल एंड यू गिव देम एक्सेस टू मैनेज दोस अकाउंट। तो वो सारी चीज़ें होती है, तो वो आप में उसमें आपको अकाउंट में एक्सेस दे देगा उसको, सो ही विल ओपन दैट सप्लायर ऑन बिहाफ ऑफ दैट यूजर, ठीक है। और ऐसे उसको कुछ एक्सेस ऐसे दिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यू कैन सी, सपोज सप्लायर छुट्टी पे, तो यू कैन कम हियर यूजर मैनेजर, राइट? एंड यहाँ पे डेलीगेशन का एक टास्क होता है, ठीक है। तो डेलीगेशन को होता है, वो डेलीगेशन आप जैसे ही करोगे तो आपका टास्क उस यूजर को असाइन हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ओके ओके। चला जाता है, तो आप यू कैन असाइन योर टास्क टू। अदरवाइज ही विल आल्सो क्रिएट ऑन सप्लाई, जो सप्लायर है वो प्रोफाइल में जाके ही विल ऐड मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स। वो कैसे ऐड करेगा? ही नीड टू प्रोवाइड द, वो क्वेश्चनर ओपन करवाना पड़ेगा फ्रॉम द बायर साइड। वंस यू ओपन दैट क्वेश्चनर, जो सप्लायर इज रजिस्टर्ड उसको ओपन करेगा वो, एंड ओपन करने के बाद, जैसे कि आपको मान लो सपोज द सप्लायर सृजन इंस्टीट्यूट इज डन फॉर नाउ, SGR इज डन, राइट? अभी सप्लायर बोला कि मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स ऐड करने हैं, ठीक है। सप्लायर बोलेगा मुझे मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स ऐड करने, तो सप्लायर क्या करेगा? आपको रिक्वेस्ट बोलेगा बायर को, मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट 4-5 और बढ़ाने हैं, तो वो आप करेगा, तो आप यू कैन डायरेक्टली ऐड इट फ्रॉम हियर, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे, राइट? द करेक्ट वे इज what you will do, you will go to the supplier registration questionnaire, you ask him, I will open the questionnaire for you. So what you will do, you go to the advanced view from here, come to the documents, come to registration, यहाँ पे आप मॉनिटर में जाएंगे, ठीक है। ये अभी राइट नाउ इट इज इनवाइटेड, मीन्स दिस सप्लायर इज ऑलरेडी इनवाइटेड। जब ये क्लोज हो जाएगा ना, तो यहाँ पेंडिंग सिलेक्शन दिखाएगा, ठीक है। ओके। पेंडिंग, सो इस केस में आपको यहाँ पे आके रीओपन द इवेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ओपन करोगे तो ये सप्लायर के साइड से फॉर द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यू जस्ट गिव द टाइम एंड वो ओपन हो जाएगा टू रिस्पॉन्ड दैट सप्लायर क्वेश्चन। फिर वो आपको अपना कॉन्टैक्ट ऐड करके सबमिट करेगा, देन यू कैन क्लोज दिस क्वेश्चन एंड पोस्ट अप्रूवल ऑन दैट। ओके, गॉट इट। सारी चीज़। सो दीज आर द डिटेल्स, आप वन बाय वन इसको करो सब पहले, ठीक है। एंड देन व्हाट विल डू ना, अभी तो आप देखो आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं, फर्स्ट रिक्वेस्ट, रजिस्ट्रेशन, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। आर यू हाँ क्लियर? करेक्ट करेक्ट, मुझे बस अब प्रैक्टिस करना है। हाँ, आई एम आप क्लियर ऑन द। या प्रैक्टिस भी करिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे ना हम लोग, इसके बाद आज के लिए इतना काफ़ी है कि अभी आपको हाँ एडमिन इतना वाला काफी, हाँ इतना काफी है। बोलोगे तो इससे एडमिन है सारा ओपन करके आपको ये सब चीज़ें भी दिखा और ओके। नहीं, ओवरडोज हो जाएगा सर, वैसे ही गंजा हो रहा हूँ मैं। डोंट डू दिस प्लीज। आप उसको गो थ्रू कीजिए डॉक्यूमेंट को, ठीक है। और मैं आपको ये ओके, एक्सेल वाला, आप मेरे को ईमेल ये दे दीजिए, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको ये दे दूंगा, एक्सेल वाला फाइल, सो यू कैन कन्फिगर योर मैं आपको क्वेश्चन। व्हाट्सएप भेज रहा हूँ, ठीक है। आप ये भेज दो, विल कंप्लीट ओके, दिस। और ये रिकॉर्डिंग भी आप भेज दोगे या इस ये तो सूरज सृजन भेज वाले दोगे? ही भेज पाएंगे, दे कैन ओनली शेयर, ये सारी चीज़ें वही कर पाएंगे।